میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ اختلاف کی حضور بات صلی ہی اللہ نہیں علیہ ہے. وآلہ آپ اس وسلم. بات کو بولنے میں آپ کو مذائقہ کیا ہے کہ جب آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ پچھلے انبیاء وہ آئے ہیں اپنے زبان میں، اپنی قوم کی زبان میں، لیکن ہیں پوری دنیا کے لیے تمام تو میں زبان نے اس والوں میں کے آپ لیے. کے ساتھ میرا کیا اختلاف ہے؟ میرا تو کوئی اختلاف تو نہیں ہے اس کے سنت تو اوپر آپ کے ٹوٹ ساتھ. گئی، سنت تو ٹوٹ گئی، اس کو ماننے کے لیے آپ تیار نہیں ہے نا. سنت ٹوٹ گئی. دیکھیں سنت جہاں پہ جو بات ہو رہی ہے آپ کو پھر کہ وہی آپ سمجھ 4 نہیں منٹ کی آتی ہے. تقریر وہ کریں ایک گے، علیحدہ بولیں گے بات نہیں ہے کہ ٹوٹی. وہ اپنی ایک قوموں کے لیے آئے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانیت کے لیے آئے ہیں. یہاں پر تو کوئی میرا اختلاف آپ کے ساتھ نہیں ہے. لیکن جو سنت نہیں ٹوٹی ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو میسج آیا ہے وہ ان کو جس قوم میں وہ پیدا ہوئے ہیں اسی زبان میں آیا ہے. ان کو عبرانی میں نہیں آیا یا کسی اور انگریزی میں نہیں آیا، نہ فارسی میں آیا، حالانکہ فارس بھی ساتھ ہی تھا. ٹھیک ہے، بھائی مقصد یہ ہے آپ کو کہنے کا. اور ابھی بھی اگر آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں قرآن عربی میں ہی، یعنی کہ اس کی جو فضیلت ہے اور جو ہم لوگ اس کو کہہ لیں کہ ایک قسم کا اللہ تعالیٰ نے جو اس کو بچا کر اور جو وعدہ کیا ہے کہ اللہ جو تعالیٰ اس اڑنگا کو ہے اس پروٹیکٹ کا کرے گا. جواب آپ، جو اڑنگا ڈالا ہوا ہے اس کا جواب آپ دے نہیں رہے نا. دیکھیں اسکانی صاحب، مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ آپ کو کون سے جواب چاہیے. میں آپ کو کیا بولوں؟ ہاں مجھے صحیح جواب چاہیے، صحیح جواب آپ نہیں دے رہے. کس چیز کا آپ کو جواب؟ مجھے جبکہ واضح آپ کا سوال ہی قرآن میں نہیں اس سمجھ کا آ رہا جواب پھر کہ موجود آپ. ہے اور واضح ہے، لیکن آپ صرف جو ہے وہ اس کو نہیں سمجھ رہے اور اپنی طرف سے جواب دے رہے. زاہدہ اسکانی صاحب، میں اپنی طرف سے کوئی بھی جواب نہیں آپ کو دے رہا. میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں اچھا جو مجھے کہ بتائیے کہ پچھلے انبیاء اپنے قوم کے لیے اور اپنے زبان میں ان کی قوم کی اس میں آئے. یہ ہے قانون اور یہ ہے سنت اللہ کی. ٹھیک ہے، اگر وہ سنت ٹھیک ہے اگر کیا؟ آپ کہہ آپ رہے ہیں کہ بتائیے، سیدھا سیدھا بتائیے، صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں کب کہہ رہا صحیح ہوں کہ کہہ آپ رہے غلط کہہ ہیں. رہے اب ہو؟ بس ٹھیک ہے. اب کیا ہوا کہ سنت اللہ کی یہ ہے کہ اپنا قوم اور اپنی زبان، قوم کا اس میں نبی آ رہے ہیں، قوم کے لیے اپنے اور اپنے زبان میں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے اتنا؟ دیکھیں آپ جو ہے نا اس کو مکس کر رہے ہیں، بس دونوں چیزوں کو مکس ٹھیک ہے کر رہے یا ہیں. میں نہیں، نے آپ ٹھیک کو ہے یا یہ غلط ہے؟ کہا ہے، آپ مجھے یہ بتا دیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن لوگوں میں پیدا ہوئے عرب میں. ہیں؟ عرب میں. ان کو وہی کس زبان میں آئی؟ عربی میں. بس ختم. اتنی سی بات کہہ رہا ہوں، آپ میں کو تو پتہ نہیں ڈائریکٹ کیا بتا سمجھ رہا ہوں، نہیں آ لیکن رہی. آپ ڈائریکٹ بتانے میں آپ کو کیا پریشانی ہے؟ میں نے کیا مجھے تو کوئی پریشانی، میں نے تو آپ کی ہر بات کی کیا میں کھایا آپ کی سے یہ تصدیق پوچھ کی رہا ہے. ہوں کہ پچھلے انبیاء اپنی زبان میں اپنے قوم کے لیے آئے یا نہیں؟ وہ اپنی قوم کے لیے آئے اور اس زبان میں ہی آئے جس قوم میں وہ پیدا ہوئے. ہاں، اپنے زبان اور اپنے قوم، ہاں، یہ ہے سنت اللہ. ٹھیک. اپنی زبان اور اپنی قوم. لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنی زبان اور پھر اپنی لیکن قوم میں کہہ صرف رہا ہوں، نہیں ہے نا لیکن کیا یار. کہہ رہا ہوں؟ اب میری بات تو سنیے، جی میری جی بات کو بھی سنیے، سمجھیے. سنت اللہ کیا ہے کہ اپنا قوم ہے، اپنی زبان ہے، نبی آ رہے ہیں. ٹھیک ہے اتنا؟ ٹھیک ہے جی. ہاں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام عربی زبان میں آئے، اپنی قوم کے لیے نہیں آئے یا پوری دنیا کے لیے آئے. ٹھیک ہے صرف یہاں پر یہ جو سنت ہے وہ بھائی، پوری ٹھیک دنیا ہے والی، اتنا اگر یا آپ اس کو نہیں؟ کلیئر کر رہے ہیں، اتنا ہم ٹھیک وہ ہے یا پوری نہیں؟ دنیا کے لیے آئے، او بھائی انسانیت کے اتنا لیے آئے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ارے پوری بھائی اتنا انسانیت کے ٹھیک. لیے آئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام عربی بولنے والے ہیں، قوم بھی عربی جانتی ہے، لیکن وہ صرف عربوں کے لیے نہیں ہے، پوری دنیا کے لیے. صحیح؟ جی بالکل صحیح ہے. ہاں. تو سنت اللہ ٹوٹی یا نہیں ٹوٹی؟ سنت اللہ ٹوٹی؟ یہ سنت اللہ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ بات کریں، یہ سنت اللہ ٹوٹ نہیں رہی ہے. بولیں گے آپ نہیں، یہ جو بیچ میں آپ منہ سے نہیں، آپ کو جواب نہیں آ رہا نا، آپ کو جواب دیکھیں نہیں آ رہا، اس لیے آپ بولیں گے نہیں. پہلے کوئی یونیورسل نبی نہیں آیا نا، پہلے کوئی دیکھیں یونیورسل یہاں نبی پہ نہیں کوئی آیا. سنت نہیں ٹوٹ رہی ہے. یہاں پر جو بھی حضور اللہ صلی نے اللہ علیہ وسلم کا کبھی جو بھی کوئی یونیورسل نبی نہیں بھیجا. پہلے اپنی قوم کے لیے بھیجے. یہ کہہ رہے ہیں پیر صاحب، اس کو انڈرسٹینڈ کرے. اگر یونیورسل ہوگا، اگر اللہ چاہتا تو ان کو کسی بھی زبان میں وہی کر سکتا تھا. اگر اللہ نے نہیں کی، اللہ کی مرضی ہے، لیکن اللہ نے ان کو یونیورسل اگر بنا کے آپ بھیجا. ان مان پہ جاتے فوکس کرے، اس پہ بھائی جان، فوکس کرے. اگر آپ مان جاتے میں آپ کو اس کو جواب بھی دے دیتا، لیکن آپ مان ہی نہیں رہے نا. میں کیا نہیں مان رہا، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کو پتہ نہیں کیا مجھے کیا سنت منوانا چاہ اللہ رہے ہیں. ٹوٹی یا نہیں ٹوٹی؟ اسکانی صاحب، اس وقت انسان کو بڑی مشکل پیش آتی ہے جب وہ سمجھ بھی رہا ہو اور نہ بھی سمجھنا چاہے، تو پھر وہ بڑی مشکل میں ہوتا ہے. تو یہ ہے صورتحال ان کی، انکل صاحب کی. سنت ٹوٹی یا نہیں ٹوٹی بھائی؟ یار آپ پتہ نہیں سنت ٹوٹی یا نہیں ٹوٹی. چلیں ٹھیک ہے، ٹوٹ گئی. آج آگے بات کریں، آپ چلیں شاباش. چلیں آپ بات سنت کریں. سنت اب ٹوٹ گئی.
अब यही आएगा वो तो सवाल आपसे करते हैं अहमदी हजरात, यही सवाल आपसे करते हैं कि देखो सुन्नत टूट गई, लेकिन इसका जवाब ये नहीं है कि टूट गई आप कहें, कहीं बिल्कुल नहीं टूटी। अब आप अब आप जो है ये आसकानी एक साहब, मिनट, एक एक आपको मिनट। मैं बात बताना चाहता हूँ, एक एक आप मिनट। एक होल्ड करें अभी आप इस बात को। मैं आपको मैं सही आपको जवाब कब दे से रहा हूं। कह रहा हूं कि आप नहीं टूटी, वो टूटी नहीं जवाब टूटी, तो ये जो नहीं दे आप रहे, ये कैसे जो नहीं वो लोग टूटी? जो अगर ये मेरे साथ कोई कादियानी बात कर रहा होता ना, तो उसको मैंने बड़ा जबरदस्त जवाब देना था। लेकिन आप यहाँ पर बैठकर जो है ना, अपने ही बीच में बैठकर जिस तरीके से आप सवालात कर रहे हैं, आपका तरीका सवालात बिल्कुल गलत है। आपको अगर एक बात का बताना है, आप उसको कंप्लीटली सही तरीके से बताएं, वरना ये पहेलियां बुझाकर और ये लंबा कर करके और पता नहीं क्या कि एक ही बात को बार बार आप च्युइंगम की तरह आपने इसको जो है ना वो रोल किया है। दैट इज नॉट द वे ऑफ लाइक किसी बंदे को अगर आपने बताना है, ठीक है। मैं माजरत खा हूं भाई, मेरी देखिए, मैं यहाँ पर थोड़ा सा इंटरप्ट कर रही हूँ दोनों को। पीर साहब जो बात कर रहे हैं वो अपनी जगह पे ठीक करें और आप भी अपनी जगह पर ठीक करें। पीर साहब वो अनकरप्टो भाई आपको ये बात कहना चाह रहे हैं कि नबी बेशक वो तमाम जहान वालों के लिए आए हैं, लेकिन जिस तरह अल्लाह ताला ने फरमाया कि नबी अपनी कौम की जुबान में आता है, तो वो आए अपनी कौम की जुबान में था जहां पर उनको भेजा गया, मबूस जहां पर किया गया उनको, हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मीयीन, कि जहां पर उनकी बेइज्जत हुई है वहां वो जुबान जो थी वही तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम के लिए कि लक़द बअसना फी कुल्ली उम्मतिन रसूला, कि हमने हर उम्मत में एक रसूल भेजा, लेकिन वो उनकी कौम की जुबान थी, उस उम्मत की जुबान बोली जाती थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि तमाम जहान वालों के लिए थे, लेकिन कौम जो थी जो जिसमें वो मबूस हुए वही जुबान उनको दी गई, वो ये कहना चाह रही है। नहीं, सुन लीजिए, सुन लीजिए। देखिए, अगर मैंने कोई पहेली बुझाए या आपका दिल दुखाए तो मैं माजरत खा हूं, लेकिन मैं आपको सही बात बताना चाहता हूं कि सही बात क्या है। जी जी, सुन्नतुल्लाह बिल्कुल नहीं टूटी। अब आप कहें कैसे? देखिए, सुन्नतुल्लाह ये है कुरान मजीद में, वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसान कौमिही, जी बिलिसान कौमिही। ये नहीं कहा वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला इला कौमिही। ये नहीं है कुलिया कायदा कि एक रसूल है वो सिर्फ अपने कौम के लिए मैंने भेजा, ये नहीं है। जी, बल्कि जुबान 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 की बात की जा रही है। यह है सुन्नतुल्लाह कि जब भी रसूल आता है, जो जुबान जानने वाले थे कौम उस जुबान में आते, जो उनकी अपनी जुबान होती है उस जुबान में वो आता है। यह है सुन्नतुल्लाह। सुन्नतुल्लाह ये नहीं है कि सिर्फ अपने कौम के लिए, अल्लाह ने नहीं कहा कभी भी। बल्कि हजरत यूसुफ को देखें, वो चले जा रहे हैं कहां चले जा रहे हैं? वो क्या वो उनकी कौम थी? मिस्र की तरफ। जी, क्या वो उनकी कौम थी? नहीं थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, क्या वो उनकी कौम थी? फिरौन की तरफ जा रहे हैं? नहीं। लेकिन जिस कौम की तरफ उनको बेइज्जत मिली है ना, जिनको नबूवत मिली मैं है ये जहां कह पर, रहा हूं, उसी जुबान में मिली है ना। सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूं, बारीक नुक्ते को समझिए। रसूल अपने जुबान, जो अपना जुबान है उसमें आता है, उसको वही होती है। ये नहीं है कि दूसरे कौम के लिए नहीं जाता, दूसरे कौम के नहीं, लिए वो तो जाते हैं बिल्कुल। हाँ, इस बात को समझ। अगर कोई जी, आपको कहे अब कि देखिए, बनी इसराइल की जो आयत नंबर 70 है, वहां पर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सुन्नत मन क़द अरसलना क़ब्लक मिन रुसुलिना वला तजिदु लिसुन्नतिना तहवीला। नहीं, अब आप बात समझे दस्तूर या नहीं समझे? जो अल्लाह ताला यानी ने सुन्नतुल्लाह- आपसे पहले हमने जो रसूल भेजे। जाहिर नहीं, आप बात असगरी समझिए। साहब, जो अफगानी सुन्नतुल्लाह साहब, है, भाई सुनिए, जो सुन्नतुल्लाह है वो ये है कि रसूल की जो जुबान है, रसूल की कौम की जुबान है, वही उस पे होती है। ये है सुन्नतुल्लाह। सुन्नतुल्लाह ये नहीं है कि वो अपने कौम, जो कौम है उसकी तरफ भेजा जाता है, ये सुन्नतुल्लाह नहीं है। अल्लाह पाक ने कुरान में नहीं, ये नहीं फरमाया। उसकी कौम की जुबान में भेजा था, जहां बिल्कुल, वो मैं जाती भी है आपको वो उसकी यही कह जुबान रहा हूं। होती बात है। जुबान जी, की हो रही है, बात कौम की नहीं हो रही। जी मैं आपको बिल्कुल यही अगर कह रहा नबी था, लेकिन देखिए, आपने बिलिसानी कौमी ही। हाँ, बस ये सुन्नतुल्लाह है। जी, यानी नबी अरबी थे तो अरबी बोलने वाले, कोई भी नबी किस जुबान में है उसी जुबान में वही होगा उसको। ये है वो बेशक। बात की जा रही है।
بے شک یہی بات آسانی صاحب میں بالکل یہی اور بات کہہ رہا تھا اور آپ کو بالکل بار بار یہی کہہ رہا تھا میں. بڑی مہربانی ہوئے گی حضور، تھوڑی سی درخواست ہے، آپ نے بڑی لمبی گفتگو فرمائی ہے. اب جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ اس غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں کہ سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا ہے کہ وہ جب کسی قوم میں رسول بھیجتا ہے تو وہ اس رسول کو جو وحی کی زبان ہے وہ وہی ہوتی ہے، اس قوم کی ہوتی ہے. اللہ نے یہاں پر یہ بات نہیں فرمائی کہ میں رسول جس زبان میں وحی کرتا ہوں وہ وہی اس قوم کی زبان میں. یہ الفاظ تو ہے نہیں اس آیت میں. اس آیت میں یہ الفاظ ہیں وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، یعنی کہ ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر اس کی قوم کی زبان میں. مراد یہ ہے کہ جو پیغمبر کسی قوم کی طرف آتا ہے تو وہ پیغمبر اس قوم کی زبان کو جانتا ہے، اس قوم کی زبان والا ہوتا ہے تاکہ وہ انہیں خوب کھول کر سمجھا سکے. یہاں یہ بات ہو رہی ہے، یہاں یہ بات نہیں ہو رہی. اللہ نے اپنے اوپر لازم قرار نہیں دیا کہ ہم کسی پیغمبر کو اس میں بھیجے جانے والی قوم کی زبان میں وہی کرتے. یہ الفاظ تو ہے ہی نہیں یہاں پر. نہیں دیکھیں سندھو بھائی آپ ترجمہ غلط کر رہے ہیں. وہاں پر پاسٹ کی بات کی گئی ہے، ذرا دوبارہ پڑھیں اس آیت کو، لفظی ترجمہ کر دیں اس کا. میری پہلے بات، میرا نقطہ سمجھ لیں پھر بات کرتے ہیں. پاس میں ہی ہو رہی بات، اور یہ بات ہو رہی ہے کہ ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر اس کی قوم کی زبان میں. یہاں یہ اللہ نہیں فرما رہا کہ ہم نے کسی پیغمبر کو ایسی وحی نہیں کی جو اس کی قوم کی زبان میں نہ ہو. وحی کا تو ذکر ہی نہیں ہے. آپ لوگوں نے دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ لقد بعثنا کل امت، کہ ہر امت میں اللہ تعالیٰ نے ایک رسول جو ہے وہ بھیجا ہے. تو وہ جہاں پر اس کو مبعوث فرمایا گیا، جہاں پر اس کو مطلب اس کو بھیجا گیا ہے وہ اس قوم کی زبان کا ہے. یہ مطلب ہے اس بات. یہ بات درست ہے آپ کی، لیکن سوال یہ کہ سورۃ ابراہیم میں جو موقف اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ ماضی میں جو رسول آتے رہے وہ اس مراد یہ ہے. میں اس کی وجہ بتاتا ہوں. اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت انڈیا میں نازل ہو جائیں اور وہ عبرانی زبان جانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس قوم کی زبان نہیں جانتے. یہ ہے پوائنٹ. اگر ایک رسول ایک ایسی قوم کی طرف مبعوث ہو جائے جو کہ اس قوم کی زبان ہی نہیں جانتا تو وہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی وحی کو کیسے اس قوم کو سمجھائے گا. یہ نقطہ یہاں بیان ہو رہا ہے. اس میں یہ بالکل بیان نہیں ہوا اللہ نے کیا کہ میں رسول کو ہونے والی وحی بعین ہی اس قوم کی زبان میں کرتا ہوں. یہ بات نہیں. دوسری بات یہ ہے جب اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں پاسٹ کا سیغہ بیان فرما رہی ہے. میری بات ختم ہونے پہ تھوڑی دیر صبر کر لیں. دوسری بات آپ نے یہ بیان فرمائی کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ آیا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، اس لیے اللہ نے اپنی جو وحی ہے امیین کے زبان میں کی. یہ بھی ایک آپ نے غلط کر دی. امیین جو تھے وہ تو پہلے ہی ان پڑھ تھے. عرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف یہی نہیں فرمایا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، بلکہ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم. جو بعثت ہے اللہ تعالیٰ کے رسول کی وہ نہ صرف امیین کی طرف ہے بلکہ آخرین کی طرف بھی ہے. اب امیین کی زبان تو مان لیا عربی ہوگی، زبان کہاں عربی ہے. اس لیے آپ لوگ اپنی طرف سے قرآن کی طرف ایک موقف گھڑتے ہیں اور قرآن کی طرف ٹھوک دیتے ہیں. یہ ظلم نہ کریں. نہیں ابھی آپ ایک چیز دیکھیں، جب ہم سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70 پڑھتے ہیں، سوری 77 ہے میرا خیال، اس میں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سنت من قد ارسلنا، دستور وہ جو بھیجا ہم نے قبل کا، یعنی رسول بھیجے ہم نے قبل کا آپ سے پہلے. یہاں پر بھی وہاں پر بھی پاسٹ کا سیکھا، یہاں پر بھی ارسلنا بھیجا ہم نے قبل کا آپ سے پہلے، من رسولنا رسول ہمارے، یعنی دستور جو ہے اللہ تعالیٰ کا، دستور ان کا جو ہم نے تم سے پہلے، آپ سے پہلے جو رسول بھیجے. وَلَا تَجِدُوا لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا، اور آپ ہماری سنت کو تبدیل نہیں پائیں گے. اب سنت کیا ہے کہ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، کہ جس قوم میں ہم نے رسول بھیجا وہ اس قوم کو جس میں اس کو مبعوث کیا گیا وہ اس کی اسی میں اس کو وحی کی گئی، اسی میں اس کو تلقین کی گئی. یہ وحی کے الفاظ کہاں پر ہیں یار؟
भाई अल्लाह ताला वही के जरिए ही बात करते हैं ना। कुरान करीम में क्या है देखें भाई, ये अपने बंदे की शान नहीं कि अल्लाह अच्छा ताला इनको उनके वो साथ भी दे डायरेक्ट बात देते करे। हैं। बस एक मिनट उम्मा बहन, एक मिनट। जी सैयद होली आए हैं। होली साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम करने अस्सलाम। दीजिए। और अर्ज ये है कि यहाँ पर आप मामला बहस कर एक सेकंड, एक मिनट सिद्धू भाई मेरे सलाम ले लेने। जी होली भाई अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी खुश आमदीद, आप तशरीफ लाए। क्या हाल है आपका, कैसी हैं? हाँ जी ठीक है। जी इस मौजूद के ऊपर क्या फरमाएंगे आप? मैंने नहीं ठहरे, मैं बात नुक्ता बयान करने लगा हूं, आपने रोक दिया मुझे। मैंने जी अर्ज जी किया करें है कि नुक्ता बयान। आपकी तमाम बहस इस बात पर हो रही है कि अल्लाह जो कलाम नाजल करता है, वही नाजल करता है, वो वही उस उम्मत की जबान में होनी चाहिए जिस उम्मत में वो रसूल नाजल हुआ है। कुरान मजीद जब अल्लाह ताला ऐलान कर रहा है कि हुवल्लज़ी बाअसा फिल उम्मीयीना, और उसके बाद अल्लाह ताला इसी रसूल को वआखरीन मिनहुम लम्मा यल्क़ू बिहिम फरमाता है, तो अल्लाह ने ऐलान कर दिया कुरान में कि ये रसूल जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ना सिर्फ उम्मीन के लिए मबूस हुए हैं बल्कि आखरीन के लिए भी मबूस हुए हैं। तो जब आप इस बात को मानती हैं कि रसूल जो है उनकी बैसत उम्मीन के लिए भी है और आखरीन के लिए भी है, तो फिर आप पर ये लाजिम है कि कुरान को ना सिर्फ उम्मीन की जुबान में दिखाएं बल्कि आखरीन की जुबान में भी दिखाएं। आप अपने कवानीन बना तो लेती हैं बिला वजह, और देखिए अल्लाह उनको ताला नहीं, ने फरमाया कुरान करीम में कि हर कौम के लिए, लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के को फरमाया गया कि आप तमाम जहान वालों के लिए हैं। हाँ जी, काफ़तन लिन्नास हैं आप। हाँ उमा जी, बहन आपने एक चीज इनसे बोलने दे मुझे। सिद्धू भाई आपने पता क्या चीज है, आप ना सूरत फुसिलत की ना आयत नंबर 44 खोल लें जरा। नहीं, पहले तो इन दो पर बात कर रहे हैं जो नहीं नहीं सारी नहीं कवानीन। नहीं, आपका जवाब जो है ना उस सूरत उस आयत में है, नहीं इसमें नहीं है। जो आपने नहीं, सवाल किया है ना, मैं आपको वो जवाब देना चाहता हूँ। वही की बात, वही की अगर बात। हम सुन लें अभी, अगर हम इसे अजमी कुरान बनाते तो ये लोग कहते कि इसकी आयत खोलकर क्यों बयान नहीं की गई? क्या अजमी किताब और अरबी रसूल? कहो ये ईमान लाने वालों के लिए हदायत और शफा है, मगर जो लोग ईमान नहीं लाते इनके कान बहरे हैं और ये इनके लिए अंधा, यानी कि ये जो कुरान है ये इसको अपने लिए अंधापन समझते हैं। ऐसे लोग दूर से पुकारे जा रहे हैं। यानी यहाँ पे अल्लाह ताला क्लियरली फरमा रहे हैं कि भाई ये जो वही है जो ये अरबी जुबान में इसी वजह से आई है क्योंकि ये अरबी, यानी कि जो लोग जिन लोगों में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे, जिनमें वो पले बड़े थे, उनको ही पहले समझाना था ना। और जितने भी नबी आए हैं उनका यही यानी कि जो जी भी सैयद होली काम साहब से रहा बात है। करते हैं। जी सैयद साहब। जी क्या बात, मतलब देखें कुरान पाक तो एक बड़ी वाज़ेह किताब है और नबी को उस कौम की ज़बान में ही नाज़िल किया जाता है। नबी उस कौम की ज़बान का ही होता है। उसके लिए ज़रूरी इसलिए है वो ज़बान कि वो पैगाम को ले युबैश ना लाऊं, कि उसे खोल खोल कर बयान कर दे। ये बात कुरान पाक में बड़े वाज़ेह अंदाज में है। ये जो सूरा की इब्राहीम है, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला बिलिसान कौमिही लियुबय्यिना लहुम, वजह बयान की जा रही है। जब वो अपनी कौम की ज़बान में आया है तो किसी और कौम की ज़बान में उस नबी को वही होगी। उन्हें क्या, नबी को समझना आई तो कौम को क्या बताना है? ये बात तो मिर्ज़ा गुलाम कादियानी जो है अंग्रेजी में वही हो रही है। पूछ किससे रहा जाके? मुलावा मल और शरमपत लाल से। ये बड़ा अजीब नबी है। ये म्यारे नबूवत है कुरान पाक में। इस म्यारे नबूवत की आप भाइयों ने भी दूसरी आयत बताई, बड़ी जगह पर इसके लिए कुरान की बाज़ आयत की तफसीर है। तो जब नबी आया ही एक जुबान में है तो उसे वही दूसरी जुबान में कैसे हो सकती है? इतनी मामूली सी बात तो किसी की भी अक्ल में आ जाएगी। और उस कौम की जुबान में नबी को इसलिए भेजा जाता है ताकि उसको समझ में आए पहले और फिर दूसरों को समझाए। यह तो बड़ी मामूली सी बात है। एक जाहिल शख्स को नबी बनाने के लिए मतलब कुरान पाक को बदल देते हैं। आपकी फ्रस्ट्रेशन निकल आई है तो मैं जवाब दूं? अगर जवाब नहीं, इसमें फ्रस्ट्रेशन की तो कोई बात ही नहीं है। आप मतलब मुदल्लल बात करें, आप तानो तो बात है। अच्छा, इसमें आप बताएं जी, क्या दलील आपकी क्या है मैं कि आज नबी करता तो हूं। कौम की जुबान में आया मैं है, आज करता वही हूं। अंग्रेजी में आ रही है, थोड़ी देर खामोशी ही है। हार्ड, और अंग्रेजी भी गलत। और भाई मेरा थोड़ी देर खामोश तो हो।
खामोशी ब्रेक तो लगाए। अगर आपकी फ्रस्ट्रेशन दूर हो गई है, नहीं फ्रस्ट्रेशन बात, ये तौहीन की बात नहीं करनी है, तमीज से बात करें और दलील से बात करें। आप खुद फजूल बातें साथ अपनी नहीं ये तो मुंह से फजूल कहने से कोई फजूल नहीं हो जाता। देखें आपने सुने, नहीं मुंह से फजूल कहना बंद करें, दलील के साथ बात करें। और ये कादियानियत वाली बात के झूठ बोलना है और झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलना बंद कर दें। आप थोड़ी देर खामोशी इख्तियार करें ताकि मेरी बात को कर सकूं मैं। हाँ, दलील से बात करें। ये फजूल बात और फलां बात और यार किस किस्म के लोग हो, इतनी अल्लाह की तुम पर लानत है कि तमीज से बात नहीं कर सकते। आप तमीज से बात करें। हाँ मैं बिल्कुल तमीज से कर रहा हूँ बात। नहीं, जो जिनको वो मानते हैं आप उनको जाहिल कह रहे हैं, ये तमीज है। हाँ बिल्कुल तमीज है, क्योंकि आपके पास कुछ सबूत बताएं कि वो जाहिल नहीं है। नहीं, सबूत बताएं। वो शख्स एक काफिर खानदान में पैदा हुआ, वाल्मीकि उसका मजहब था, उसके अपने रिश्तेदारों ने लिखा, उस इमाम दीन की किताब है दीदे हक और दो काफिरों की कहानी, किताब का नाम है। उस शख्स ने लिखा कि मिर्जा गुलाम कादियानी काफिर है। इसका नाम आप लोगों ने अपनी किताब में लिखा कि गुलाम सोंदी है। सीरतुल महदी में आपकी रवायत दर्ज है कि 10 बंदी से सोंदी हो गया। और इमाम दीन सफा नंबर 12 दो काफिरों की कहानी में साफ लिखता है कि ये इसका पैदाइशी नाम गुलाम सोंदी है। जब ये सियालकोट फरार हुआ पुलिस से तो इसने 2 काम किए। पहला काम इसने किया कि गुलाम सोंदी से अपना नाम बदल के गुलाम अहमद कर लिया ताकि पुलिस ना पकड़ सके। दूसरा काम इसने ये किया, इसका अपना रिश्तेदार लिख रहा है सफा नंबर 12 पैराग्राफ नंबर 1 पर, कि दूसरा काम इसने यह किया कि मुसलमान होने का ढोंग रचाया। उसको नबी बनाते हो, खुदा का खौफ करो। अच्छा, आप एक मिनट आपके नजदीक कोई नहीं उसके रिश्तेदार को बात करो जो बात हो रही है। बताओ इमाम दीन झूठ बोलता है? नहीं ये बोलो, नहीं बोलो इमाम दीन झूठ बोलता है? इमाम दीन झूठ बोलता है? उसने दीदे हक और 2 काफिरों की कहानी गलत लिखी है। चुप कर, बोलिए नबी कुरान तो गाला नहीं था। नहीं आप तो मिर्जे पर बात करो ना। उसके रिश्तेदार ने लिखा है कि ये काफिर है, मुर्तद है, वाल्मीकि था, पैदाइशी था, इसका बाप भी काफिर, इसका पूरा खानदान काफिर। राणा साहब खामोश हो जाए। नहीं देखें, इमाम दीन झूठ बोलता है, इमाम दीन झूठ बोलता है। इतना ऊंचा बोलने से तो कुछ नहीं होगा, मिर्जा सच्चा नहीं हो जाएगा। मिर्जा एक काफिर खानदान में पैदा हुआ, वाल्मीकि उसका मजहब था। इमाम दीन ने अपनी किताब दीदे हक में लिखा है ये मुर्तद मुसलमान होने का ढोंग रचाया। गुलाम सोंदी इसका पैदाइशी नाम। उसने सफा नंबर 386 पर यह लिखा है कि मेरे पास जनाने वाली दाई का सर्टिफिकेट मौजूद है। कहता है तहरीरी शहादत, कहाँ है वो तहरीरी शहादत जो जनाने वाली डाई ने दी है? तो उसको क्यों छुपाते हो? उसने लिखा है गुलाम मुर्तजा की गैर मौजूदगी में। तुम 1835 क्यों कहते हो? 1840 वो खुद लिखता है उस मुर्तद को, तुम झूठा कहते हो। हम तो झूठा कहने से डरते हैं, तुम खुद उसको झूठा कहते हो। तुमने खलीफे बना रखे हैं। उसकी आखिरी वसीयत 27 अक्टूबर 1907 को मिर्जा कादियानी मुर्तद ने आखिरी वसीयत की। मिर्जा कादियानी मुर्तद ने उस वसीयत में लिखा, उसने ये लिखा कि उसके बाद अंजुमन सिलसिले को चलाएगी और कोई खलीफा नहीं होगा। तुम ऐसे लानती हो, तुमने खलीफे बना लिए मिर्जा कादियानी मुर्तद को झूठा साबित करने के लिए। तुम तो मिर्जा कादियानी मुर्तद को खुद झूठा कहते हो। ओ फिड़ा मुंह तेरा चोपड़ी कर चलेगा। नहीं तुम ये बताओ कि मिर्जा कादियानी को झूठा क्यों कहते हो? तुम तो खुद उस लानती को झूठा कहते हो। हमको क्या लेक्चर दे रहे हो? तुम उसकी तारीफ बोल पहले। कहते हो 1835 जमिया लानती दा पुत्र, और सफा नंबर 177 बकिया हाशिया में वो लिख कर गया कि मैं 1840 में पैदा हुआ। तुम उसको इसलिए कहते हो 1835 से लेकर 1842 तक गुलाम मुर्तजा अफगानिस्तान में था, कादियान में मौजूद ही नहीं था। बच्चे को पता है हराम की औलाद है, वल्दुल जना है। तुम एक वल्दुल जना को नबी कहना चाहते हो? तुम्हें अकल नहीं है, लानती हो। तेरे मुसलमान तेरा नबी नहीं तुम मिर्जे को झूठा क्यों कहते हो? ये बोल, तेरे नबी भी तुम मिर्जे की गल क्यों नहीं मानता?
ये जिसको बेच रहे हो उसको खुद तो सच्चा कहो। और तेरा नबी मैं तो मिर्जे की हिमायत कर रहा हूँ। तेरा जिस लानती को बेचते हो उसको सच्चा कहो, उसकी लिखी हुई तारीख पैदाइश गलत है या सही है, लानती हो, तुम पर हुज्जत है उसकी बात, उस हरामी की बात के मैं 1840 में पैदा हुआ, बुला ही लो, हुज्जत मान लो। उस हरामी मिर्जे कादियानी की बात कोई खलीफा नहीं होगा, अंजमन होगी, लानती हो, बुला, हुज्जत मान लो। तुम लोग कैसे बकवासी हो, मिर्जे को खुद झूठा कहते हो और हमें आकर कहते हो कि हम तुम्हारी बात मान ले। कितने खबीस लोग हो तुम। ना मान तू मैंने जवाब दे, तू कुरान तू मिर्जे नु क्यों झूठा कहना है? दस तू कुरान मानदा, मैं तो तेरे कुरान नु मिर्जे लानती दी गल कर, तू मिर्जे नु क्यों झूठा कहना है? लानती है, लानती है, जिन्नू तो बेचना है उन्नू आप झूठा कहना है। मैं नहीं बेचता किसी नु भी, जिन्नू बेचना है उन्नू झूठा कहना है। मैं जुदो सौदा की नहीं, जिसको बेचते हो उसको तुम झूठा कहते हो। जब तू उसको झूठा कहना छोड़ देगा तो हमें आकर लेक्चर देना। काफिर पैदा हुआ, काफिर खानदान में पैदा हुआ, अपने हाथ से लिख कर देखे गया, तुम इतना ऐत करते हो। देखो ये खड़े होके ऐत करते हैं, इतने लानती है, कहते हैं मैं खिलाफ अहमदिया के कायम रखने की खातिर जो मिर्जा गुलाम कादियानी की वसीयत की खिलाफ वर्जी है, कहते हैं उस खिलाफ वर्जी को कायम रखने की खातिर मैं जान माल वक्त की कुर्बानी दूंगा। ओए कुत्ते हो, लानती हो, ए कहो कि मिर्जा गुलाम कादियानी नु कायम रखने की खातिर जान माल की कुर्बानी दूंगा। ओए जाके खुद तो मानो मिर्जे को। नहीं तू कर रहे हैं, तू मिर्जे नु क्यों नहीं मानता? तू मिर्जे दी गल क्यों नहीं मानता? लानतिया क्यों नहीं मानता मिर्जे दी? तेरी भी नहीं मननी। मिर्जे नु तू झूठा कहना है, ऐसी नहीं झूठा कहते। तू कुरान मानदा, तू कुरान नहीं मानदा। नहीं, तू कुरान नु छड़, तेरा कुरान ना मिर्जे दी गल कर। लानतिया तेरा दे आना ना लगा, तेरा दे मिर्जे को खुद झूठा कहते हो, एक एक बात उस हरामी को झूठा कहते हो। लानती खलीफों को, वो हरामी जो अपनी बेटियों से जना करते हैं, जिनका पूरा खानदान, और तुम्हारे कादियानी लोग 30 साल के लिए जेलों में बंद हैं। इधर अभी मैं अपनी बरात खोलता हूँ, लाइव गूगल करके दिखाऊंगा, इतने लानती ग्रोह से तुम ताल्लुक रखते हो। पहले खुद मिर्जे को सच्चा कहना शुरू करो, फिर आके हमें लेक्चर देना, दफा दूर हो जाओ। मेरे लिए 1,24,000 को देने विच मिर्जा साहब भी लानतिया पहला मिर्जे नु ते सच्चा कह। 1,24,000 क्यों झूठा कहना है मिर्जे नु? सारे सच्चे ने है पहले तू मिर्जे नु झूठा कहना छोड़। बात नहीं कहन दिया। अच्छा बोल, ओदी तरीके बताए बोल, 1,24,000 झूठे ने बस बोल। ये मिर्जा और शातम मिर्जे कादियानी मुर्तद को झूठा कहना छोड़, फिर लेक्चर देना। बाकियों पर नहीं, वो मुर्तद जो था ना मिर्जा कादियानी, वल्दुल जना है, वल्दुल हराम है। मैंने उसका सर्टिफिकेट जो मसरूरे के पास कॉपी है, उसके करीबी आदमी ने मुझे उस कॉपी में से फोटो कॉपी करके दिया है, लाडो दाई का सर्टिफिकेट। उसमें लिखा है गुलाम सोंदी नाम है, 1841 सितंबर के महीने में पैदा हुआ। गुलाम मुर्तजा के अफगानिस्तान जाने के 3 साल बाद ये लानती पैदा हुआ, इसलिए तुम 1835 कहते हो, 1838 के करीब फटकते तुम्हारी जानें निकल जाती हैं, क्योंकि हरामी साबित हो जाएगा। अच्छा तो तू की है? नहीं मिर्जे दी गल कर। मिर्जे नु पहला सच्चा कह, मिर्जे की बात जो हुज्जत है तुम हरामियों पर वो मान लो। नहीं मिर्जे की बात पहला मिर्जे नु सच्चा कह। तू एडा लानती है हरामी, मैं कह रहा है मिर्जे दी वकालत मैं कर रहे हैं, तू लानती मैनू लेक्चर दे रहे हैं। मैंने तू अपना डीएनए कराया? नहीं तू मिर्जे कादियानी सच्चा कह, पहला कह कि मिर्जे कादियानी ने जो लिखा वो सच्चा है। मिर्जा साहब भी 1,24,000 नहीं साहब ने लानत बेच, काफिर दा पुत्र है हो रामदा, जिदा प्यो ना मालूम है। सफा नंबर 1231 पर मिर्जा नासिर ने कौमी असेंबली की कार्रवाई में उस लानती ने कौमी असेंबली के हर मेंबर को कहा कि जो अलेक्जेंडर डोई था, मिर्जे को अपने खत में कहता था कि मिर्जा हराम की औलाद है और इसका बाप ना मालूम है। मैं नहीं कहा, अलेक्जेंडर डोई ने किया। तो मुझे बता कि ये बात मिर्जे नासिर हरामी ने क्यों की कौमी असेंबली में, कि मिर्जे को जलील कर दिया बैठकर। तुसी ते मिर्जे दी शलवार ला के फिरदे हो। अच्छा तू बार सौदा पढ़ला मेरा सौदा फिर जाके। नहीं तुम मिर्जे की शलवार उतारे फिरते हो और हमें लेक्चर देने आ जाते हो। ठीक है, पहला जाके मिर्जे नु मन, फिर कोई एक सवाल है पहला जाके अपने मिर्जे नु मन। एक सवाल दा जवाब दे। जब एक नहीं सवाल दी छड़, पहला उस मुर्तद नु मन जाके। मेरे सवाल दा जवाब दे। नहीं मिर्जे नु मन जाके पहला
ਮਿਰਜ਼ੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਿਓ ਦਾ ਝੂਠਾ ਰੁਤਬਾ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਛੱਡ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਆਈ ਜਵਾਬ लेक्चर ਦੇ। देन मेरे लिए 1,24,000 एक तो मेरे में आ जाते हैं कुरान पर बात करने की तो तमीज जवाब है, नहीं, और जवाब। जिसको बेचते हैं उसको झूठा ये एक कहते हैं प्योर सुबह कावज शाम है उस ना। लानती को। ओए ये एक तू प्योर खुद झूठा कावज है, कहते हो तो जवाब हमें दे। क्यों मना करते हो? पहले ये एक- खलीफे एक उतारो। प्योर का नुतफा है, मेरी बात का 27 जवाब दे अक्टूबर सकता कुरान तो। 1907 की मिर्जा कादियानी मुर्तद के हाथ की लिखी हुई तहरीर मेरे पास अरे मौजूद पागल है, कोई की है। ये है खिलाफत यार। जो है मिर्जे के पागल है आखिरी कोई। वसीयत की, उसके आखिरी हुक्म की, जो उसने लिख कर दिया, उसकी खिलाफ वर्जी है। इन हरामियों को पहले जाके उतार और इनकी कसम खाना छोड़ के मैं खिलाफत अहमदिया को कायम रखने की खातिर ऐ कहना सीख कि तू मिर्जे गुलाम कादियानी मुर्तद नू कायम कर खातिर अपनी जान माल दी कुर्बानी करेगा, फिर मेरे नाल बकवास करन आई। समझे हैं? अच्छा ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਮੈਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡੀਐਨਏ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ पहला मिर्जे का डीएनए लाया। अच्छा बड़ा आदमी है मैं यार नबूवत का दावेदार नहीं, मिर्जे को झूठा कहते हो तुम, ऐसे लानती हो तुम। मिर्जे कादियानी मुर्तद को तुम खुद झूठा कहते हो, हमें आकर लेक्चर देते हो, जिसको बेचते हो उसको रद्द करते हो। कोरोना साहब मंजी थलो कर लो, मिर्जे मंजी थलो बढ़िया अजय। हाँ, मिर्जे को कड्डो, मिर्जे को कड्डो और उसको निकालो और उसको सच्चा कहना शुरू करो। लानती हो। ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਨੀ ਦਾ नहीं पहला मिर्जे नू सच्चा कहना शुरू कर, जाके खलीफियां नू ना थले कुत्तियां नू ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਣੀ ਛੱਡ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮੁਰਤਦ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਖਿਲਾਫਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਆਪ ਤੇ ਸੱਚਾ ਮੰਨ, ਫੇਰ ਲੈਕਚਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ। हाँ पहले मिर्जा साहब के हवाले से जाके पढ़ लो, फिर आके गल करना क्या करती है ना बड़ी जगह लिखा। पहले वो दसो ना, पहले मिर्जे नु मंजी थलो कड्डो ना, ओ मंजी थलो कड्डो ना पहले नु, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ फिर तुम दसेगा मंजी थलो लिख के की वेचदा सानू दसो, मंजी थलो लिख के की वेचदा सी। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਲ ਨਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਨਾਲ ਬਾੜੀ ਜਦੋਂ ਪੜ ਲਓ ਆਪੇ ਬਾਹਰ ਆ नहीं हकीम नूरुद्दीन की कहंदा सी, हकीम नूरुद्दीन की कहंदा सी, ਉਹਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਮੰਜੀ ਥਲੇ ਲੁਕ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਹਕੀਮ ਨੂਰੁੱਦੀਨ ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਠੀਆਂ ਭਰਦਾ ਸੀ ਸਿਰਤੁਲ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 158 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਣੀਆਂ ਢੜਕਦਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਯੂਦੀ ਜਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜੋ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜੋ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ? ਤੂੰ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਐਵੇਂ ਬਕ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। और यहूदी जो कहते थी अपने नहीं तो यहूदियों ने मिर्जे की गल कर, आशिक हो गया मिर्जे को इतना झूठा कहते हैं, इनको मैं कितनी दफा कह रहा हूँ, लानतिया मिर्जे दा वकील ते मैं बनिया बैठा है, तुझे समझ नहीं आती है? सारे जिसको कुत्ते को तू बेचता है मैं उसकी बात नहीं करता, सारे महल्ले वाले उसको तू झूठा कहते हैं। मिर्जे को झूठा कहना छोड़, पहले कसम खा के मिर्जे को झूठा नहीं कहेगा। मेरे मिर्जे दी गल तेरे ते हुज्जत है लानतिया। नहीं मेरे लिए कोई हुज्जत नहीं किसी की गल की। हेलो जी, मिर्जे दी गल ते हुज्जत नहीं। मेरे 1,24,000 मैं बैन थल्ले लाओ इनू, मैं किसी को नहीं मानता। चल ठीक है, तेरे ने भी तो चल तेरा मेरा खत्म नहीं गया मामला। इन्ने जो का तू हैगा बंगला जा ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਗੂੰ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਸਿਰਤੁਲ ਮੰਦੀ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 10 ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਗੂੰ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸਿਰਤੁਲ ਮੰਦੀ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 10 ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਗੂੰ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿਆਂ। कहते तो मैं भी बहा देना लिखा भी इन्होंने खुद है एसके भाई, इन्होंने खुद ही लिखा कि उसके मुंह से भी गूं आ रहा था, पीछे से भी गूं आ रहा था। ਐਸਕੇ ਰਾਤੀ ਦੇ ਧੋਖ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਲਿਆ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਐਸਕੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਦਾ ਧੋਤਾ ਜੇ ਮੀਆਂ ਦੀ ਬਰਾਤ ਤੇ देखिए कैसे कुरान पर बात करने आ जाते हैं। मियां तो मैंने चुकदे और नहीं, पहले मियां जाके ने अपनी लाइन ठीक कर। ਮੀਆਂ ਦੀ ਬਰਾਤ ਦੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਧੋਤਾ ਚੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੁਝੇ ਤਾਂ ਰੋਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਰਤੁਲ ਮੰਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਮਿਰਜ਼ੇ ਤੇ ਲਾਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ? ਫਿਰ ਮਿਰਜ਼ੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ੇ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਪਹਿਲੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਹਲਾਲ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਆਪ ਰੋਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨ ਦੇ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 1855 ਤੇ ਮੇਰੀ 16 17 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਦਾ ਫਿਰ ਮਿਰਜ਼ੇ ਤੇ ਲਾਣ ਪਾ आपने तो मर्जी से उड़ा दिया, वो तो मुकर गया मिर्जे नु मनन से ही।
ਨਹੀਂ ਮੈਂ 1,24,000 ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਜੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ नहीं ਹੋਇਆ तो शातम है ना, शातम का कोई नहीं, शातम नहीं है। नहीं साथ है ना, हाँ, तू मिर्जे शातम के है। बाद साबित नहीं होता तो भाग ਤੁਸੀਂ जाते ਸਾਰੇ हैं, ਆਪਣੇ मिर्जे के बाद बाबे साबित ही नहीं मुकर्रम थे। समझते, वो दूसरे नादरा बाबा भी को नस नहीं गया है ਸੀ, ना। ਸੈਫੀ ਵੀ ਨਸ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਰ ਸਲੀਮ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਖੋਲ ਕੇ ਵਾਇਸ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਲੀਮ ਦੀ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। 16 ਜਾਂ 17 ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਂ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਨਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਜੋ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਨਸਣ ਡਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਨਸਣ ਡਏ ਅਸੀਂ ਹੋ। ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਸਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਸਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਨਾ, ਜੋ ਜਵਾਬ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪਿਓ ਦਾ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਲੈਣ ਜਾ ਕੇ, ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਉਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਤਾਂ ਪਿਓ ਜਵਾਬ। ਸਾਬਤ ਕਰ ਲੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਸੱਚਾ ਤੈਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਲੈ। ਉਹ ਮੰਮੀ ਬੇਗਮ ਰਾਣਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣ, ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਬਣ, ਰਾਣਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣ, ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਬਣ। ਬਾਂਦਰਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਣਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਮਝ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਬੇਗਮ ਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਖੋਲ ਲੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਥਮਲੀ ਪੇਸ਼ਮਗੋਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਪੁੱਛਣੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਉਹ ਦੱਸੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ। ਚਲੋ ਮੁੰਡਾ ਦੱਸੋ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਸੁਣਦਾ ਆਪਣਾ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਲੈਜੈਂਡ ਉਹ ਮਰਿਆ ਸੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਆਪਣਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਦੱਸੋ 15 ਨਾ, ਮਹੀਨੇ ਕੀ ਚ। ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਅਬਦੁੱਲਾ ਮਰਿਆ ਸੀ 15 ਮਹੀਨੇ ਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਖੋਤੇ ਦੇ ਬਾਤਾ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ, ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਡੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਲੁਕ ਗਿਆ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਵਫਾਤ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੇਗਮ ਦੀ ਮੰਜੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਗਿਆ ਇਹ ਸੀ। ਕੀ ਉਹ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਨਸਰ ਜਹਾਂ ਦੀ ਬੇਗਮ ਦੀ ਮੰਜੀ ਥੱਲੇ ਲੁਕਣ ਦਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ ਯਾਰ? 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਵਫਾਤ ਹੋਈ, ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਨਾਲੇ ਸ਼ਾਤਮ ਉਮੇਬਾਜੀ ਨੂੰ ਥੱਲਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਤਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਤੀ। ਸ਼ਾਤਮ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ? ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਣਤ ਪਾਓ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਣਤ ਪਾਓ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਖਿਆ? ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲਾਣਤ ਪਾਉਣ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ? ਕਿ ਮੈਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਯਾਰ। 40 ਸਾਲ ਪੈਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ 40 ਨਹੀਂ ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 40 ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਈ ਡੋਂਟ ਕੇਅਰ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਕੇਅਰ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਤਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਲਾਣਤ ਆਪਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਤਮੀ ਮੰਨਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਉਹਦਾ ਕਰਤੀ। ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਣਤ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਤਮੀ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਲਾਣਤ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਤਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇ, ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਓ। ਕਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਜਾ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਕੇਅਰ। ਆ ਦੇਖੋ ਹੈ ਸ਼ਾਤਮ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਣ, ਤੇਰੇ ਜਮਨਾਲ ਤੇ ਵੀ ਲਾਣ, ਤੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਣ, ਜਾਂ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਾਲਾ ਵਿਕ ਲਿਆ। ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦਾ ਬਾਲਾ ਵਿਕ ਲਿਆ, ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦਾ ਬਾਲਾ ਵਿਕ ਲਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਦਾਂ YouTube ਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਜ਼ੀ ਮੁਹੰਮਦ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ 4 ਸਾਲ ਕਾਜ਼ੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਕਾਜ਼ੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਮੇਰਾ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੇ, ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਖੁਲਾ, ਇੱਥੇ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਜ਼ੀ ਯਾਰ ਵਾਲਾ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਦੇਗਾ। ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਖੁਸ਼ੂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬਾਲਾ ਵਿਕ ਲਿਆ। ਉਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬਾਲਾ ਵਿਕ ਲਿਆ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਅੱਬਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? 1835 ਦੇ ਲੈ ਕੇ 1842 ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗਿਆ ਸੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਖੋਲ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਜਿਹੜਾ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੋਂ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਅੱਬਾ ਪੈਦਾ ਕਰ, ਉਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਅੱਬਾ ਪੈਦਾ ਕਰ। ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦਾ ਤੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਮੈਂ ਬਾਜੀ ਹੁਣ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਤੇ ਤੇਰੇ ਰਾਣੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਣ, ਤੇਰੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਣਤ ਹੀ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਲਾਣਤ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਣ, ਤੇਰੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਣਤ। 2 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਣਤ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸਣਿਆ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਦਾ ਪਿਓ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ। ਤੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਪਿਓ ਲੈ ਆ, ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਦਾ ਪਿਓ ਦੱਸ ਕੇ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਣਤ ਤੇਰੇ ਤੇ। मैं बहन मुझे छोटा करे, मुझे जाना है। ये बस ये हाँ वो चले गया शायद, मुझे छोटा कर दे। जी मैं सुन रही हूँ। मैं नहीं, चाहती छोटा हूँ कर दे। आप एक इल्मी गुफ्तगू करते हैं, लेकिन फिर वो इस तरह से बात शुरू हो गई। क्या मतलब? नहीं इल्मी गुफ्तगू मैं कर रहा था। मैं तो उससे कह रहा था मिर्जे को सच्चा कहो। जी पहले मिर्जा ही मिर्जे को सच्चा कहे, फिर मैं उसकी बात सुनूंगा। अब जिस प्रोडक्ट को मिर्जाई बेचता है खुद उसे झूठा कहता है, हमें कहता है मान लो इन। कसम खाता है खिलाफत की जिसकी मनाई मिर्जा कादियानी का कि अपनी आखिरी वसीयत में अभी दिखा देता हूँ, लगा देता हूँ यहाँ पर। जी मोस्ट वेलकम। है
वो आप 1 मिनट देखें, मैं अभी लगाने की कोशिश करता हूँ। जी जी। मैंने कई दफा दिखाई है इन्हें। सैयद साहब, आज आपने थोड़ा सा अगर टाइम हो आपके पास, तो मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने जो दजल किए, उनमें एक दजल ये भी था कि उसने कहा कि कुरान जो है ये कादियान के करीब नाजिल हुआ, हाँ हाँ, और बिल्कुल। उसने एक ग्रोह के रोजे भी जो है वो मतलब खुलवाए। तो क्योंकि रमज़ानुल मुबारक का महीना है, तो मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा इसके ऊपर आप हमें जरूर इसके बारे में बताइए। नहीं देखिए, मैं जो है प्रॉब्लम ये है कि मिर्ज़ाइयों ने खुद किताबें पढ़ी नहीं, हमें पढ़ा डाली है। ये जी। बड़ी सख्त प्रॉब्लम है। अब हम दोनों एक लेवल पर नहीं है, उसको पता ही नहीं मिर्ज़ा लिख कर गया है, हम पढ़ के कहते हैं कि ये क्या खबासत कर दी उसने। बात ये है कि मिर्ज़ा कादियानी को अगर देखें, मैं रिसर्च की दुनिया से ताल्लुक़ रखता हूँ, और जी। हम रिसर्च जब करते हैं तो उसके मुसलमा असूल हैं, हम उन असूलों को वायलेट नहीं करते। जी। तो ये कादियानी जो है, इनमें से अक्सर जाहिल हैं, आपको पता होगा, 10वीं फेल लोग हैं ये, और जो पढ़े लिखे हैं वो आपसे आकर इस तरह की बहस करेंगे नहीं। ये तो मैं अभी तरावियां पढ़ा कर आया, तो ऐसे ही मैं तो उसे वो ऊंची बोल रहा था, तो मैं उसे एक ही बात कह रहा था, भाई तुम मिर्जे को सच्चा मान लो। उसने, मैं कुछ भी नहीं कहता कादियान, मैं कादियानी को कहता हूँ जो मिर्जे ने लिखा है तुम पर हुज्जत है। नबी की बात से इनकार करने वाला काफिर होता है, चाहे वो जो भी हो, अपने आप को कोई नबी कहे और कोई उसको मान ले, तो उसकी बात वो टेक इट और लीव इट अंग्रेजी में कहते हैं। जी बिल्कुल, दरमियानी रास्ता नहीं है वहां पर, बेशक। तो मैं उसको कादियानी को एक बात कहता हूं कि मेरी बात मानो, तुम उसको नबी कहते हो, कहते रहो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारा मुसलमान हो जाना मुझे तो टके का फायदा नहीं है। बिल्कुल। मैं तो इसलिए ये बात करता हूं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसने इस्लाम का, कुरान का, सुन्नत का एक हर्फ भी आगे पहुंचाया, उसका बड़ा अजर है अल्लाह की नज़र में। वरना मिर्ज़ाई मेरी तरफ से जो खराब मिर्ज़ाई हैं, मैं तो कहता हूँ वो इन्हीं अकायद के साथ कब्र में उतर जाए, क्योंकि आपको तो पता है, आप कुरान पढ़ती हैं, सूरह ताहा में लिखा है ना, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इतना साफ लिखा है कि हमने तुम्हें पैदा किया इसी जमीन से, हम तुम्हें इसी में वापस करेंगे, व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और इसी में से दूसरी मर्तबा भी पैदा करेंगे। बेशक। आज की साइंस इसकी तस्दीक करती है। मैं आपको बताऊं, मैं साइंसदान हूं, इंसान का साइंसदान। जी। तो बात यह है कि हमारे यहाँ जो रिसर्च है, जो तहकीक है, उसके मुसलमा असूल है। कादियानी उस हर असूल को तोड़ता है जहालत की वजह से। पहला असूल है कि रेफरेंस एक लाइन का होता है। आप सोचें कि कोई पीएचडी का कैंडिडेट एक थीसिस लिख के ले आए जिसमें 70 सफ़े पीछे से भी लिखे और 70 आगे से, वो तो 50,000 सफ़े का थीसिस होगा। मैं तो सारी उम्र एक को थीसिस पढ़ के मर जाऊंगा। जी ठीक है, ये इन जाहिलों की अकल में ये बात ठहरती नहीं। और खुद जब रेफरेंस देते हैं तो कहते हैं लिखो ला तक़रबुस सलाह, लिखा हुआ है कुरान में। अरे भाई पूरी आयतें पढ़, है वन तुम सकारा तेरा प्यो पढ़ेगा, सही है। ये इनकी जो जहालत है, पहली बात, मुझे इन पर बड़ा इतराज है। दूसरी बात, जो हम नहीं मानते वो तो हम दलाइल की बिना पर नहीं मानते उसको, लेकिन कादियानी को तो मानना फर्ज है ना, मिर्जा कादियानी का। आप मुझे बताएं है कि नहीं? जी बिल्कुल। अब मिर्जा कादियानी किताबुल बरिया सफ़ा नंबर 177 खजाइन की जिल्द 13 बकिया हाशिया में लिख गया है कि मेरी स्वाने यूं है, मैं बगैर देखे पढ़ रहा हूं, कि मैं सिखों के आखिरी दौर 1839 या 40 में पैदा हुआ, और 1857 में मेरी उम्र 16 बरस थी, या मैं 17वें बरस में था अभी रेशो बरदत का आगाज नहीं हुआ था। असी तो संतो इन्होंने क्लांतियां ने जुबानी याद करा चढ़ी हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो अब मैं कहता हूं, अब किसी कादियानी को बुला के पूछ लें, भाई मिर्जा कदों पैदा होया? 1835। वो आपको तारीख भी बताएगा, 13 फरवरी जुम्मे का दिन, अद्धी रात का वक्त। मिर्जा कह रहे मैं जम्मिया ही नहीं हो दो। ठीक है, वो आपको सने ईस्वी में अपनी तारीख ले। असले मुसल्ला एक किताब का नाम है जो एक मिर्जाई ने लिखी, मिर्जे के दौर में 1901 में पब्लिश हुई।
ठीक उसने है। उसकी तारीख पैदाइश 1840 लिखी है और कहता है मैंने मिर्जे से पूछकर ये तारीख लिखी है। ठीक है, मिर्जाई कहता गलत। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल जी कि वो ये बात कहती हैं, जब कादियानियों से बात की जाए, कि एक जो है वो मिर्जा साहब मतलब भूल भी तो सकते हैं, गलती भी हो सकती है, अच्छा भूल ठीक भी है, नहीं सकते हैं। इसके ऊपर आप क्या बात फरमाएं? नहीं, बात ठीक हो गई। अच्छा, जब मिर्जा एक दफा भूले, 2 दफा भूले, चलो मैं कहता हूँ मिर्जे ने 3 बारी भूल गया, पागल ते है सी ना, ठीक है। ऊपर 17 बारी केड़ा बंदा भूलदा है अपनी तारीख पैदाइश है, दसो मिर्जाइयो। और हर दफा देखें, दूसरा रेफरेंस मैं आपको 17 रेफरेंस दे सकता हूं उसकी तारीख पैदाइश की। रेफरेंस नोट करो मिर्जाइयो। ठीक है। मिर्जा को अब्दुल हमीद नामी शख्स को 500 रुपया देके इसने मार्टिन क्लार्क को कत्ल करने के लिए भेजा। अब अब्दुल हमीद को पता नहीं था कि मार्टिन क्लार्क तो गोरा है, वो उधर गया, ऊपर से वो कैप्टन था आर्मी का, आपको पता है ना, मार्टिन क्लार्क जी आर्मी का प्रीस्ट था। हमें इन्होंने इतनी पढ़ा दी हैं अपनी किताबें कि इनके बाप को नहीं पता कि वो कैप्टन था। तो वो जनाब उधर गया तो उसने देखा पहले गोरा बैठा, ऊपर से वर्दी पहनी, ऊपर से स्टार लगे हुए। उन्हें कहा वो मारे गए, मैं नहीं इन्हें मारना। उन्हें कहा इधर आओ अब्दुल हमीद। अच्छा, वो गया जी, उन्हें कहा हाँ मैं कैसे आना हुआ? वो कहता है हाँ। उसने अपने अर्दली को बुलाया, उसने कहा इसको पकड़ के उल्टा लटकाओ ना जरा। कहता है जी मुझे उल्टा मत लटकाओ, ये 500 रुपए दिए हैं मिर्जे कादियानी ने और आपको कत्ल करने के लिए भेजा है। अच्छा, उसने स्वर बोल दिया जी, ये पूरा लिखा है किताबों में। उसने कहा हुण बह जा तू। उसने बुलाई पुलिस, उसने कहा जी बयान नोट करो अब्दुल हमीद साहब का। उसने कहा जी मिर्जा कादियानी ने 500 रुपया दिया, मुझे कत्ल करने के लिए भेजा। और वजह पुलिस ने कहा भाई क्यों मार्टिन क्लार्क को? कहता है जी ये अब्दुल्ला आथम को इसने छुपाया हुआ है। अच्छा, हाँ, वो जो क्रिश्चियन हो गया था जी। हाँ, नहीं वो अब्दुल्ला आथम तो क्रिश्चियन था, वो वो पादरी था, मुसलमान से क्रिश्चियन हुआ था ना वो। हाँ जो भी था जी। उसको मार्टिन क्लार्क का दोस्त था। मिर्जे ने उसको सांप फेंकवाए, उसके दरवाजे तोड़वाए। हाँ, उसने और बड़ा फिर- अच्छा काम किया था, वो सारे बाजूर वगैरह ले आया था कि ठीक करो इन्हें। नहीं उसने नहीं, जब मुनाजरा हुआ ना 15 दिन जारी रहा, जी जी तो वो 4 चीजें ले आया जो कुरान पाक में 2 आयत लिखी है ना मौजूदात की। जी जी। उसने एक अंधे को ले आया, अच्छा, एक सिफलेटिक को ले आया जो बर्स जिसको कहते हैं, जी जी। और एक वो मुर्दा ले आया डेड बॉडी, और एक उसने गारे का ढेर लगा दिया। ठीक है। उसने कहा कि जी कुरान च 4 मौजूद चार मौजूद। इस्लाम दे कि मिट्टी का परिंदा बनाते फू करके करते उड़ा दे। अच्छा, और मिर्जा कहता मेरे बस की गल नहीं है। उसने अच्छा उन्हें वैसे ही क्या, छुपा दिए। हाँ उन्हें क्या कि चल तू न्याय नहीं बना सकता, ए कल मर गया ही ते एनू जिंदा कर दे जरा। मिर्जा कहता ना। उन्हें कहा अच्छा चल ये भी छोड़, अब तू जानवान तो डाल नहीं सकता। उन्हें क्या अन्ना है, कुरान च लिखा है कि पैदाइशी अंधे को बिनाई मिलती थी, एनू फूक मारते नजर आना शुरू है। मिर्जा कहता मेरी भूख नाल कुछ नहीं होना। उन्हें क्या लानती आते मेरे चौथा है इदा ते, और उसका इलाज तो हम भी कर सकते हैं सिफिलिस वाले का, आपको पता है ना, ये मौजा हम भी दिखा सकते हैं। वो मिर्जे से वो भी नहीं हुआ, अपने आप को हकीम कहता था। तो ये 4 बातें वहां पर हुई। और मिर्जा थत्था था, वो बोलता मैं कहता हूं मैंने उन लोगों से पूछा है जिन्होंने फर्स्ट हैंड ये बात सुनी है। कहते हैं मिर्जा बोलता था ना, किसी को समझ नहीं लगती थी क्या कह रहा है, लोग गैस करते थे, इसलिए मुनाजरे में वो लिख कर देता था। अब खैर वो पकड़ा गया, मैं आपको हवाला बता दूं, उसका पसे मंजर बता रहा हूं। उसने पुलिस को बयान दे दिया, पुलिस ने उस अब्दुल हमीद को भी पकड़ लिया, और इसने उससे पहले वो पंडित को मरवाया था ना, लेखराम को इसने किराए के कातिल से मरवाया था। वो इसके आकाओं ने इसे बचा लिया। दूसरा वो मार्टिन क्लार्क को मारने भेजा, तो फिर आकाओं ने कहा हुण साडे ते ही हमला, साडा कुत्ता सानू बाऊ बाऊ। वाह, अच्छा मिर्जा साहब कातिल भी है? मैं कहता हूँ मुस्तनिद कातिल है, कत्ल के। देखें जी हवाला नोट करो, मिर्ज़ावी नोट करो, मुझे तो जुबानी याद है हवाले। अल हकम अखबार है 31 जुलाई 1901 का अखबार, सफा नंबर 7 कालम नंबर 1। ठीक, दोबारा बोलता हूँ, अल हकम अखबार कादियानियों मिर्ज़ाइयों का 31 जुलाई 1901 का, सफा नंबर 7 कालम नंबर 1।
शुरू में कॉलम के लिखा हुआ है कि मिर्जे को कत्ले अमद के मुकदमा में, कत्ले अमद में किसी को जानबूझकर कत्ल कर, इरादी तौर पे, हाँ जी, अदम, हाँ, गुरदासपुर के डिप्टी कमिश्नर की अदालत में हाजिर किया गया। अच्छा, हाँ जी, ये मिर्जा पर तो 6 कत्ल के मुकदमे हैं, की गल कर रहे हो, तानू इन्ना ही नहीं पता लगा आज तक। बड़ा लानती सी है। अच्छा ये तो छोड़ दें, आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कार्रवाई शुरू हुई तो अल हकम अखबार ने लिखा है, उसने कहा कि चल भाई कसम खा के बता तेरी उम्र कितनी है। अच्छा, मिर्जे के अल्फाज लिखते हैं कि मैं बगैर देखे पढ़ रहा हूँ, अल्लाह को हाजिर नाजर जान कर कहता हूँ आज मेरी उम्र 60 साल है। 60 साल, अच्छा, अब देखें 31 जुलाई 1901 को कह रहा है, ठीक, उसमें से 60 निकाल दें, केड़ा सन आंदा है? जी बिल्कुल, 1841। बेशक, मिर्जाई झूठे लांती कहते ने भी 1835 तो ऐसे अगे लंघना ही नहीं, मिर्जा हरामदा साबित हो जाएगा। अच्छा, ये फिर इनकी पैदाइश के ऊपर इनको झूठ बोलने से क्या मिलता है, क्या बचाओ? नहीं, वो बात ये है, देखें ऐसा हुआ, मैंने देखें किताब लिखी है 650 रुपये की, मैं कहता हूँ मिर्जाइयों की बंद हो जाएगी। मैंने कोई 1,500 पाउंड खर्च किया है ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स मंगवाने में। मेरे पास सियालकोट के डिप्टी कमिश्नर का एक डॉक्यूमेंट मौजूद है जहां पर इसका नाम लिखा है गुलाम सोंदी। जो एप्लीकेशन में शॉर्ट लिस्ट दी गई पीएन के लिए था, अर्दली का जॉब था इसके पास, अगर आपको नहीं पता, रनर उधर लिखा हुआ है। इसकी डिजिग्नेशन रनर चपड़ासी नु कहंदे ने, किनू कहंदे ने? एडा वड्डा नबी सी कि अल्लाह ने चपड़ासी बनाता गोरे दा, काफिर दा, जिसकी सलीब तोड़ने आया था उसका चपड़ासी लगा दिया इसको। तो बात ये है कि मिर्जा गुलाम कादियानी जो है ये एक बड़ी अजीबो, और आपको ट्रेजेडी सारी स्टोरी की ये है कि आम कादियानी को बिल्कुल पता नहीं है, सुमन बुकमन, और ना उसको बताते हैं। कहते हैं कादियानी को एक ही बात बताते हैं, यार ये मुसलमान तो हमारे अजली दुश्मन है, हाँ अल्लाह के मसीह को हमने मानना था, इन्होंने लानतियों ने मानना ही नहीं है जी, और इनके उलमा तो आसमान के नीचे बदतरीन मखलूक है। और आके कहते हैं जी वो लौंडेबाज फराना लौंडेबाज। मैं आपको इनको आजकल गूगल करके दिखाता हूँ। वो लुकमान नामी जो शख्स है, इनका मिशनरी, यानी कि एक मुरब्बी होता है, एक मिशनरी और मुबल्लग होता है। इनका मिशनरी था कनाडा में, उसको 30 साल कैद बामुशक्कत की सजा बच्चेबाजी और लौंडेबाजी में हुई है। अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा, नहीं अभी गूगल करें, मैं कहता हूँ, मैं अभी ब्राड लगाता हूँ, आपको गूगल कर करके दिखाऊंगा इनको। मिर्जा ताहिर का दामाद अब्दुल करीम खान, वो जो दरमियान वाली लड़की थी ना जिससे उसकी शादी हुई, उसका छोटा भाई उमरान खान इन्होंने बरतानिया की पार्लियामेंट का मेंबर बनवाया, एमपी। 3 महीने बाद लौंडेबाजी के जुर्म में जेल। ना जी, मेरे पास तो लिस्ट है इनकी। अब एक और सुने, वो एक न्यूरो सर्जन था बर्मिंघम में, कादियानी, ये जो अल हदा में एंकर नहीं होता सवाल जवाब का, इसका फर्स्ट कजन है वो। जी जी, आप लिखें बर्मिंघम न्यूरो सर्जन, औरतों से बदकारी करने के जुर्म में 16 साल कैद व मुशक्कत। सही, नाम ले लेकर आपको मैं बता रहा हूं। और मैं इसके मुकाबले में कादियानियों से कहता हूं, एक आलमे दीन ले आओ जो 30 साल के लिए 16 साल के लिए जेल में हो, लौंडेबाजी के इल्जाम में या जनाकारी के इल्जाम में, है ही कोई नहीं। ये हालत है कादियानियत की। तो अब आप सोच लें, और मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा था क्यों नहीं जाते 1835 से ऊपर। बात ये है कि 1800, ये जो गुलाम मुर्तजा था ना जी, इसने 1818 में सिखों की आर्मी ज्वाइन की जिसको दल खालसा कहते हैं। ठीक है, तो ये बात लिखी हुई है विकीपीडिया पर, जिसके नीचे कुछ 50 के रेफरेंस हैं इस बात के दूसरी किताबों से। वहां एक बॉक्स में लिखा हुआ है कि डेजिग्नेशन कमांडर, हालांकि वो हवलदार था। अच्छा, और पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट 1818 से 1849, 1849 में सिखों को डिपोज कर दिया अंग्रेजों ने, तो उसकी नौकरी जाती रही।
फिर एम्प्लॉयर दल खालसा सिख आर्मी। अब देखें मिर्ज़ाइयों ने तो वहां लिखा, मुझे पता है किसने लिखा है ये आर्टिकल में, ये के कमांडर था। तो खैर कमांडर तो पीछे नहीं रह सकता ना जंग में। अब हुआ यह कि 1836 में सिखों ने पेशावर पर कब्जा कर लिया और वो था उस वक्त अफगानिस्तान का हिस्सा। अफगानियों ने कहा सिखों की ये मजाल, उन्होंने जी आर्मी खड़ी कर ली और उन्होंने प्रोग्राम बनाया, अब हम सिखों को पंजाब पर कब्जा करेंगे बदले में। सिख डर गए, वो गए अंग्रेजों के पास, उन्होंने कहा भाई साहब माई बाप हमारी मदद करो, ये तो हमें मारने आ रहा है। अंग्रेजों ने कहा, उस वक्त शाह शुजा को मीर काबिल ने डिपोज किया हुआ था। उन्होंने वक्त देखा कि हम तो अफगानिस्तान पे इनडायरेक्टली कब्जा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सिखों की आर्मी मुफ्त में लड़ाई करेगी और हम उनकी मदद करेंगे और शाह शुजा को बिठा देंगे। उन्होंने सिखों को बता दिया भाई हम उनको रोक तो देंगे लेकिन कब्जा हमारा, वही पुरानी आदत। उन्होंने बिल्कुल ऐसा किया। सितंबर 1838 में पूरा दल खालसा, गुलाम मुर्तजा, गुलाम मोहिउद्दीन, अब्दुल कादर समेत तीनों भाई, एक नहीं तीनों भाई, ये वहां से रवाना होकर अफगानिस्तान चले गए। कादियान से अफगानिस्तान का रास्ता 2 महीने का था उन दिनों। अच्छा। वो भी किसी काफले के साथ। तो अब वहां से वापसी हुई जनवरी 1842 में इसकी, गुलाम मुर्तजा की। ठीक है। तो आप मुझे बताएं कि अब मिर्ज़ाई ये मान ले कि मिर्ज़े ने ठीक लिखी है अपनी डेट ऑफ बर्थ 1840 1842, वो तो हाँ जी, फिर साबित तो करने सही की साबित जरूरत ही ही नहीं होता है। रहती। मिर्जा गुलाम कादियानी का बाप नामालूम है और मैंने $1,00,000 का इनाम रखा हुआ है। अच्छा। दोनों कब्रें मौजूद हैं, गुलाम मुर्तजा की भी और मिर्जे कादियानी की भी। और डीएनए निकालने के लिए एक प्रोब है, कब्र भी खोदनी नहीं पड़ती। अगर गुलाम मुर्तजा का डीएनए मैच कर जाए मिर्जा गुलाम कादियानी से, खुदा की कसम 1 घंटे में $1,00,000 ना दिया तो काम ही कोई ना किया। और मैं दे सकता हूं $1,00,000, ऐसी भी जी कोई है यहाँ पर कोई सुन रहा है जमाते कादियान से? हाँ, बहुत बड़ी मैं तो बात बड़ी की देर से कह रहा हूं। है होली साहब ने, डॉक्टर साहब ने। अगर कोई सुन रहा है तो आए प्लीज। हाँ हाँ बिल्कुल आए। और मैंने अपनी किताब के टाइटल देखिए पर ये नाम लिखा है। ये एक ऐसी बात है, मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी भी किसी में गैरत होगी तो वो ये बात सुन के खामोश नहीं रह सकता। क्यों डॉक्टर साहब, मैं ठीक कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ? हाँ बिल्कुल ठीक है। ये आपने बहुत बड़ी बात की है। नहीं, मैंने बड़ी तहकीक के बात की है। नहीं, मैं आपकी तहकीक के ऊपर बात नहीं किया करी, हम सुनने वालों के लिए ये बात जो है ये एक बहुत बड़ी बात है। और मैं समझती हूँ कि जमाते कादियान में अगर किसी में थोड़ी सी भी गैरत नाम की कोई चीज है तो वो इस बात का जवाब दें आकर। बिल्कुल दे सुनना चाहती है। बिल्कुल, बल्कि ऐसा करें, टेस्ट करवाएं और फिर उसको ला के मुझे दिखाएं, मैं उसको किताब में पब्लिश करूंगा। अगर वो उसका लड़का साबित हो गया ना गुलाम मुर्तजा का, मैं तो आप $1,00,000 इनाम देंगे, राइट? उसके बाद कभी मेरी आवाज कादियानी के खिलाफ नहीं आप सुनेंगे। मैं अपनी किताब को आग लगा दूंगा उस दिन। जी आए, कोई जमाते कादियान से है भाई? नीचे कोई सुन रहा है? डॉक्टर साहब ने जो दावा पेश किया गुलाम मुर्तजा और मिर्जा साहब के हवाले से, उन्होंने फरमाया कि इनका डीएनए करवाएं। अगर ये मिर्जा जो है ये गुलाम मुर्तजा का बेटा साबित हो जाता है तो मैं अपनी किताब को जला दूंगा और मैं $1,00,000 इनाम दूंगा अपने झूठे होने पर। यानी आपकी सदाकत के ऊपर वो इनाम देंगे। अगर कोई आप में से सुन रहा है तो प्लीज आए और इस चैलेंज को कबूल करे। जी डॉक्टर साहब, मैंने सही ऐलान किया है? बिल्कुल सही किया। जी आए जी, करें डॉक्टर साहब के साथ कोई जो भी 1,00,000 ले, हमें भी पता चले। डॉक्टर साहब, ये सारी चीजें जो आपने हमें आज हमारे साथ शेयर की हैं, इसकी क्या बड़ी वजह क्या थी कि आपने इतनी डीपली तहकीक की और
आपने उसकी पैदाइश से लेकर, यानी हम लोग बात करते हैं तो नबूवत की हद तक या इस तरह, तो इतना डीप जाने की क्या वजह थी? देखिए बात मैं आपको बताऊं, जब मैं सोशल मीडिया पर आया था तो मैं एक थीसिस पढ़ के सुनाता था लोगों को, और मुझे कोई नहीं था, मैं कादियानी को बड़े प्यार से बात करता था, इन्होंने मुझसे बहुत बदतमीजी की। सबसे पहले मुझे वो दिन नहीं भूला, मैं बड़े आराम से इन्हें बता रहा था कि ये अल्फ्रेड मॉल है, ये मुसलमान नहीं है, इसको अमेरिका की हुकूमत के जरिए एक ग्रांट मिली थी, क्योंकि ये अमेरिका को ज़फ़रुल्लाह चौधरी कहता था कि हमें काफिर करार दे दिया जी, हम तो मुसलमान हैं पक्के। अब वो तो मुसलमान नहीं है ना अमेरिका वाले जी। उन्होंने कहा कि यार ये क्या है, और ख़त लिखते थे कांग्रेसमैन को और सेनेटर्स को। उन्होंने ड्रॉप्सी कॉलेज, पेंसिल्वेनिया, अमेरिका में जो सबसे बड़ा कंपैरेटिव रिलीजन का कॉलेज है उसका नाम है ड्रॉप्सी कॉलेज, वो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के अंडर आता है। जी जी, मुझे पता है उसका। हाँ, तो उसमें दुनिया के माने हुए माहिर हैं कंपैरेटिव रिलीजन के, और उनमें मुसलमान भी एक दो शामिल हैं। ये भी मैं आपको बताऊं, ये नहीं कि वो सिर्फ गैर मुस्लिम को एम्प्लॉय करता है, वो कॉलेज मुसलमान है, उसमें बड़े बड़े आलिम अपने वक्त के हैं। एक वक्त में मौलाना मौदूदी भी कहा जाता है कि उस कॉलेज के लिए कुछ करते थे या काम किया उन्होंने। तो उन्होंने अमेरिका की कहते हैं कि हुकूमत ने बिलवास्ता या डायरेक्टली उनको कहा कि आप एक तहकीकी मकाला लिखकर हमें दें और इस बात पर रिसर्च करें कि क्या कादियानी वाकई मुसलमान है, और पाकिस्तान ने खामखा उन्हें, हालांकि पूरी इस्लामी दुनिया ने इन्हें काफिर करार दिया हुआ है, और इस्लामी दुनिया तो इतनी सख्त है इन पर कि ये वहां जाकर किसी इस्लामी मुल्क में खड़े होकर नहीं कह सकते हम मुसलमान हैं। कह के दिखाएं और फिर कहें कि मैं कादियानी हूं, बड़ा मुश्किल है। ये कहते ही नहीं, सिर्फ पाकिस्तान में करते हैं ये ऐसी। तो खैर, वो उन्होंने एक पीएचडी का प्रोजेक्ट खोल दिया और अल्फ्रेड मॉल सिलेक्ट हुआ। उसने अब देखें उसका थीसिस, आप तारीख देखें, 1974 में फैसला आया, 1977 में उसने थीसिस पब्लिश कर दिया। 3 साल ये रिसर्च करवाई अमेरिका ने, और ये कहते हैं कि ये थीसिस उनके हुकूमत के ईवानों को भेजा गया। उन्होंने कहा कि भाई, और अगर आप अल्फ्रेड मॉल का थीसिस पढ़ें और अगर ये बात ठीक है, और ठीक है मेरे ख्याल में बिल्कुल ठीक है, और उसकी वजह ये थी कि अमेरिका जानना चाहता था क्या वाकई मुसलमान है। वो जब कांग्रेस वालों ने और दूसरों ने पढ़ा, उन्होंने क्या अल्लाह माफी दे ऐसे फ्राडियां दे भी पियो ने। अच्छा, हाँ, उसने पहले 87 पे, आप वो जरूर डाउनलोड करें, सिर्फ आपने, उस थीसिस का टाइटल है अहमदियत इन इस्लाम। ठीक है, बड़ा जेंटल टाइटल उसने रखा है, अहमदियत इन इस्लाम। तो आप ड्रॉप्सी कॉलेज लिखें और पेन यूनिवर्सिटी अल्फ्रेड मॉल लिखें, ALFRED, और MALL मॉल उसका नाम है, तो आपको थीसिस मिल जाएगा। गैर मुस्लिम है वो। अल्फ्रेड मॉल आजकल फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर एमरेटस है कंपैरेटिव रिलीजन का। ठीक है, ठीक है। तो उसने पहले उसने नतीजा ये निकाला, जो होता है ना एब्स्ट्रैक्ट हम उसे कहते हैं, जो पीएचडी के शुरू में 2-3 पेज पर लिखा जाता है, उसका खुलासा आप कह लें। उसने उसमें लिखा कादियानियत इस्लाम पर एक जो है ना डिसेप्शन है, एंड कादियानियत हैज गॉट नथिंग टू डू विद इस्लाम। तो ये मतलब बकायदा बुक में है कि या इंटरनेट के ऊपर मौजूद है ये सब कुछ? इंटरनेट पर मौजूद है जी, इसी वक्त आप डाउनलोड कर लें, 2 मिनट लगेंगे। ठीक है, हाँ जी, आप जरूर पढ़ना इसको। जी मैं जरूर पढ़ूंगी। आंखें खुल जाएंगी। और पहले 87 सफ़ों में वो ये कहता है कि लोग कहते हैं कि बरतानिया की हुकूमत ने इसे खड़ा किया, जिसके मैंने तो अपनी किताब में सबूत लगाए हैं। बरतानिया की हुकूमत ने ऑफिशियली इसे खड़ा किया था। उसकी तहकीक इतनी स्ट्रांग मतलब इस डायरेक्शन में नहीं गई, लेकिन उसने कहा कि अगर बरतानिया की हुकूमत ने भी इसे खड़ा किया है, तो ये अगर बरतानवी इसकी मदद ना भी करते तो इसने दावा नबूवत का ही करना था या इस किस्म का कोई दावा करना था। उसकी वो बैकग्राउंड बताता है, यानी उन्होंने इमाम दीन का नाम बताने की कोशिश की कि ये असलियतन ऐसा था। हाँ, कहता है इमाम दीन से इसका ताल्लुक इसलिए था कि वो रूहानी पेशवा था चूड़ों का, खाकरोबों का, ये उसमें हिस्सा चाहता था।
یہ چاہتا تھا اسے کسی حصے کا انچارج بنا دیا جائے اور یہ اپنی پیری فکری جاری رکھے. کہتا اس نے انکار کر دیا. پھر اس کو ایک موقع لیکن مل دیکھیں گیا. ایک سیکنڈ، میں یہاں پر ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گی کہ جس طرح آپ نے ابھی اس کے بارے میں بتایا کہ وہ کیا ہے خاکروب اور ان کا مطلب اس طرح سے اور جادو ٹونو والا، لیکن اس کے باپ کا نام جو ہے وہ غلام مرتضیٰ ہے، اچھا. غلام قادر ہے. تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ مطلب ان کے پھر اگر یہ اس خاندان کا نہیں تھا تو پھر ان کے نام ایسے کیوں تھے؟ ہاں میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں. آپ نے سوال پوچھا، ضرور پوچھے، بلکہ پوچھنا چاہیے یہ سوال کہ جی مجھے کیا حق ہے کہ ایک مسلمان نام والے کو میں چوڑا کہوں. جی بالکل بالکل، میرا یہی مطلب ہے کہنے کا. جی ٹھیک ہے نا. آپ بتائیں امام دین غیر مسلم نام ہے؟ کیا؟ امام دین غیر مسلم نام ہے؟ امام دین ہاں جی. نہیں، مسلم نام ہے. تو چوڑوں کا روحانی پیشوا کون ہے؟ لیکن امام دین جو ہے وہ اس طرح سے آپ اس کو نہیں لے سکتے جیسے غلام مرتضیٰ، غلام مجتبیٰ، کیونکہ نہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے نہیں ہیں. نہیں سنیں نا. امام دین کا رشتہ پہلے آپ نے دیکھیں. ریسرچ کے اصول یہ نہیں ہے کہ میرا دل مانتا ہے یا کسی کا دل. ریسرچ کے اصول ہے کہ حقیقت دیکھو، ثبوت پیش کرو. جی ٹھیک. امام دین کا پہلے مرزے سے رشتہ بتائیں کیا ہے؟ آپ کو پتا ان کی؟ امام دین اس کا کوئی رشتہ دار تھا، میرا خیال اس کا سسر تھا شاید. دیکھیں آپ سن لیں اور اس کو بھولنا نہیں ہے آپ نے. جی جی. مرزے کے نام نہاد باپ جو ہے اس کا نام غلام مرتضیٰ، آپ نے ابھی کہا. اس کے اچھا 5 بھائی تھے یہ ٹوٹل. جو غلام مرتضیٰ سے چھوٹا تھا اس کا نام غلام محی الدین تھا اور وہ چوڑوں کا روحانی پیشوا تھا، خاکروبوں کا. غلام محی الدین بھی خاکروبوں کا روحانی پیشوا تھا. جب وہ مر گیا تو وہ پیشوائی امام دین کو ملی جو اس کا لڑکا تھا سب سے بڑا. اب غلام محی الدین آپ کو کیا چوڑوں کا نام لگتا ہے؟ نہیں، وہ چوڑوں کا پیشوا تھا جی. اور لیکن ابھی دیکھیں ایک سیکنڈ ڈاکٹر صاحب، میں اس چیز کو سمجھنے کے لیے یہ نہیں کہ میں آپ کی بات کا یقین نہیں کر رہی، آپ ایک کام میں کریں نا. صرف سمجھنے کے لیے نہیں کہ اب بہت سارے مسلمان جو ہیں نہیں، انہوں نے لائٹرین ہوتی ہے نا، یہ واش روم وغیرہ، نہیں ایسا ان کے کچھ وہ نہیں. ٹھیکے لیے ہوتے ہیں. نا. ابھی آپ ایک کام کریں، جب آپ براڈ پر ہیں نا، آپ میری ریکویسٹ ہے آپ یہ جو میں کہنے لگا ہوں گوگل پر لکھیں. ٹھیک ہے، DID. ایک سیکنڈ، ایک منٹ. ہاں جی. ان کے پاس آئے گی DWD سے آئے گی. کیا جی جی، کیا لکھ رہے ہیں؟ نہیں آپ لکھیں DID DID اسپیس E اسپیس HAQ حق. ایک سیکنڈ. DID اسپیس E آگے اسپیس E اسپیس E. اسپیس HAQ حق، دید حق. اچھا، دید حق. جی آگے لکھیں احمدیہ فیکٹ چیک بلاگ. وہ بشیر صاحب کا ہے نا، آپ جانتی ہیں، وہ امریکہ والے جو ہیں. آپ ملیں نہیں کبھی ان سے. احمدیہ فیکٹ چیک بلاگ، ایک ورڈ لکھیں. لکھا آپ نے؟ جی. اب اس کو گوگل کریں. میں بھی لکھ لیتا ہوں. لاجک. میرے پاس جو ہے نا وہ DWD مرزا امام. نہیں وہ جی آپ جی کی بات آگے. ٹھیک ہے. نہیں آپ ایک منٹ مجھے بھی گوگل کرنے دینا. احمدی فیکٹ چیک، ایک منٹ میں بھی کر لوں تاکہ ہم دونوں ساتھ میں کریں. بلاگ لیں جی. سب سے اوپر آپ کو لکھا نظر آ رہا ہے دید حق سائٹنگ آف گاڈ بائی جی بالکل آ رہا ہے. امام الدین. اس کو کلک کریں. جی کر لیا. ٹھیک ہے میں بھی کر دوں اس کو کلک تاکہ اب یہاں پر آپ کو دید حق بائی مرزا. نہیں آپ کو وہ صفحہ نظر آیا نا، تو دیکھیں یہاں پر دید حق اردو میں ٹائٹل لکھا ہوا ہے نا. جی جی بالکل لکھا ہوا ہے.
एक बरहम दो दो नासती। तुनास्ती। जी जी। हाँ, दीदे हक इसके किसी से ऊपर बराबर आप देखें एक सबज रंग की लाइन है, दीदे हक इमामुद्दीन लाल बेग। फ्री डाउनलोड, जी बिल्कुल, लाल बेग जी। डाउनलोड करें आप, बराए मेहरबानी प्लीज डाउनलोड करें इसको। ठीक ये है। अभी डाउनलोड कर लें, फिर हम एक पेज पर होंगे तो बात समझ में आएगी। मैं देखें कभी ऐसी बात नहीं करता जिसका मेरे पास सबूत नहीं होता। जी जी। तो मैं ये सबूत दे रहा हूं कि इमाम दीन और मिर्जा कादियानी कौन था। ठीक है। आपको हो गई डाउनलोड किताब? जी जी, मैं मतलब हो रही है वो। आप बात जारी रखिए, मैं उसी पे नहीं, लगी। फिर आप उसको खोलेंगे तो हम इकट्ठे पढ़ेंगे। ठीक है। हाँ, आपको मिर्जे खानदान का कलमा भी पढ़वाऊंगा मैं आज। अल्लाह ना करे मैं उनका क्यों पढ़ूं भी। उम्मे बाजी वो पेज नंबर 2 के ऊपर है। किसके ऊपर है? ये ना पेज नंबर जी 2 के जी, ऊपर मैंने है। निकाल लिया, पढ़े अब। लें जी, पहला सफा खोल ले। लिखा हुआ है कि एक बरम दो तुनास्ती, ठीक है जी आगे लिखा है इलाही मैं बंदा गुनाहगार हूं, जी गुनाहों से अपने शर्मसार हूं, मुझे बख्शियो मेरे परवरदिगार के है नाम तेरा जो आमुर्जगार। जी आगे लिखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह जी। वल मुनसता किताब जी ई किताब मुस्ताब तालीफ मिर्जा इमामुद्दीन जी। मारूफ बा मौलाई मौलाई हिदायत कुनिंदा कौम लाल बेगियां रईसे कादियान जिला गुरदासपुर। क्यों जी, जी, बिल्कुल मैंने ऐसे अपनी लिखा तरफ हुआ। से तो नहीं बनाया। जी बिल्कुल ऐसे ही लिखा हुआ है। आप कौम मुझे लाल बताएं, बेगदार, उसने अल्हम्दुलिल्लाह भी रईस लिखा है ना? जी जी ठीक है ना, आपने पढ़ा ना जी, अल्हम्दुलिल्लाह? बिल्कुल ऐसे ही लिखा हुआ है लाल बेगियान जी। आगे नीचे पढ़े, किसी से बर आवे न कुछ काम जहां, जब तू मेहरबान तो कुल मेहरबान, जी तेरा नाम सत्तार गफ्फार है, मेरा नाम आसी गुनाहगार है। जी। किसके शेर लगते हैं, मुसलमान या काफिर के? मुसलमान के। ठीक है जी। अब तो अंदर तो किताब मुसलमानों वाली होनी चाहिए ना। ये जी दीदे हक का मैं बता दूं, ये मिर्जा खानदान के अकायद की किताब है। और उससे पहले कि मैं आपको वो सफ़े अब दिखाऊं, आप ये जान लें कि जो गुलाम मुर्तज़ा का छोटा भाई गुलाम महियुद्दीन है ना, वो चूड़ों का खाकरोबों का पेशवा था। उसके मरने के बाद इमाम दीन पेशवा बना। और इमाम दीन, अगर मुर्तज़ा इसका बाप मान लिया जाए एक सेकंड के लिए, तो इसका चचाजाद भाई है। ठीक है। इमाम दीन से इसका रिश्ता क्या है? इसकी दास्तान में इमाम दीन एक बहुत बड़ा करैक्टर है। मिर्जे की दास्तान में पेंशन चोरी की इमाम दीन के साथ। ठीक है। सीरतुल महदी में लिखा है कि इमाम दीन इसको बहका कर ले गया। बहका कर ले गया था। वो एक ढाबे वाला भी किस्सा है इसके साथ। हाँ जी, जी। वहां ये 10 हफ्ते लक्की तवाइफ के कोठे के साथ एक कमरे में रहे, जनाकारियां की, शराबें पी और 700 रुपया उड़ा दिया। याकूब राइयों का घर उसके करीब ही है, इसलिए ये बार बार वहां वापस जाता था। जब पैसा खत्म हो गया तो इमाम दीन ने इसको कहा कि चलो घर चलते हैं। इसने कहा नहीं, वो बाप मारेगा, कुछ ना कुछ तो लेकर जाना है। तो एक चाय का डिपू था। उन दिनों चाय जो है ना राशन पर मिलती थी। ठीक है। इसने उसमें डाका डाला और 450 रुपया चोरी किया। उफ खुदाया, वो डिपो पे? हाँ, डिपू पर डाका डाला जी। और कहते हैं कि लाठी और जाली बंदूकें लेके पहुंचा हुआ था वहां। अच्छा। हाँ जी। और साथ में कौन? इमाम दीन। तो जाहिर है कि डिपू तो सरकारी था ना। सही। उन्होंने पुलिस बुला ली। पुलिस जो है वो फिर इमाम दीन को पकड़ लिया पुलिस ने। मिर्जा फरार हो गया। गुलाम मुर्तजा ने इसको बुलाया कादियान। बहुत मारा कादियान के बाहर इसको। देखने वाले कहते हैं मार मार के ना इसको अधमरा कर दिया। फिर उसने एक अपने आदमी से कहा इसको सियालकोट छोड़ के आ, बिशप के पास।
जो उसका कोई जानने वाले का वाकिफ था। ठीक है। एक और किताब ऐसी है, वो भी मैं आपको डाउनलोड करा दूंगा, उसका नाम है दो काफिरों की कहानी, वो भी इमाम दीन ने लिखी है। पहला काफिर मिर्जा गुलाम कादियानी, दूसरा मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी। वहां पर उसने लिखा है सफा नंबर 12 पर कि जब ये सियालकोट गया तो इसने दो काम किए। पहला काम इसने ये किया कि अपना नाम गुलाम सोंदी से बदल के गुलाम अहमद कर लिया, ताकि पुलिस किसी मुसलमान को ढूंढे, किसी बाल्मिक को ना ढूंढे। वाह, अच्छा। हाँ, फ्राडिया था ना। तो अच्छा, इसने मेरी आज मैं जो आपसे सुन रही हूँ, ये मैंने पहली दफा सुना, लेकिन मैंने जो आपने कुछ इसके दीदे बारे आक में पहली पढ़ा दफा डॉक्टर देखी साहब। या दूसरी? नहीं, आप मुझे बताएं, दीदे आक भी पहली दफा देखी आपने? जी बिल्कुल पहली दफा देखी मैंने। देखें, हम तो जब रिसर्च करते हैं ना, हम गड़े मुर्दे उखाड़ के रिसर्च करते हैं। हमने रिसर्च के साथ सबूत फराम किया है। मेरी लिखी हुई तो नहीं, आपको शक तो नहीं कि मैंने ये नहीं, छुपवाई बिल्कुल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने इसको सर्च किया, मैं जो कुछ आपने मुझे बताया मैंने खुद इसको खोला है। जी ठीक है। उसने कहा पहला काम इसने किया, गुलाम सोंदी ये पैदा हुआ, और आपको वो रिवायत याद है सीरतुल महदी की कि इसकी माँ इसे दरगाह पर लेकर गई, जी 10 दफा मन्नत मानी जाती थी, 10 बंदी कहलाने लगा, बिगड़ता बिगड़ता सोंदी हो गया। सौंधी हो गया। जी, और फिर ये एक रिश्तेदार की तरफ भी गया तो उन्होंने भी इसको सौंधी कहकर पुकारा था। नहीं, अब आप सुने, जी मैं हैरान होता था, मैं क्या यार एडे जाहिल खानदान दा खबीस दा बच्चा कि 10 बंदी नू सोंधी करता है। अब मैंने वहां पर $180 दिए टूरिज्म के डिपार्टमेंट को अमृतसर में। मैंने ठीक है। कहा यार पंजाब में वो दरगाह ढूंढो 1840 के करीब हो, या 1840 से 1900 तक, जहां 10 मरतबा मन्नत मानी जाती है। अच्छा, मेरे पास जी उनका जवाब मौजूद है, ऐसी कोई दरगाह ना थी ना है। अच्छा, ये भी झूठ? ये भी झूठ। सही। कहते हैं कि ऐसी कोई दरगाह का इल्म नहीं है टूरिज्म डिपार्टमेंट को। पूरी सदी में, 19वीं सदी में ऐसी कोई दरगाह नहीं थी, ना छोटी ना अच्छा बड़ी। डॉक्टर साहब, मैं आज ये बहुत बड़ी इंकशाफात है जो आज आपने मेरे सामने रखी हैं। मेरा नजरिया बड़ा डिफरेंट था मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के बारे में। मेरी सोच ये थी कि सर सैयद अहमद और कुछ ऐसे लोगों ने जो बरतानवी गवर्नमेंट के साथ मिले हुए थे, तो उनको एक ऐसा शख्स चाहिए था जो ना बोल सकता हो, जिसको कोई इल्म ना हो, और उसको थोड़ा बहुत देकर तो मतलब सारी बातें बनवाई जाए। तो मेरे नजदीक एक डमी था, जो एक मतलब एक पैरालाइज शख्स होता है जिसका ना दिमाग काम करता था ना सोच। मेरे नजदीक ये ऐसा शख्स था। नहीं नहीं, उसकी भी मैं आपको हकायक बताऊंगा और सबूत के साथ बताऊंगा ये कैसे जी, जी। हुआ। तो अब ये जो है ना, अब देखें, असल बात ये थी कि इसका नाम ही गुलाम सोंदी था। सोंदी को सोंदी ही बुलाएंगे। अब वो बड़ा हो गया, नबूवत दे दावे कर बैठा, फिर भी लोग की कहते ना वो सोंदी किथे। उन्होंने कहा भाई इसका इलाज करना पड़ेगा, एक रवायत घड़ो। ठीक है ना। जी अब आपको पता लगा मिर्जा कादियानी पैदाइशी गुलाम सोंदी है। इसका बिल्कुल सही। अपना रिश्तेदार इमाम दीन फर्स्ट कजन कहता है। अब देखें, आगे सुने, रिश्तेदारियों की बात सुने। रिश्तेदारियां अगर गहरी से गहरी होती जाए तो फिर तो मिर्जा उसी खानदान का होगा जो इमाम दीन है ना जी, है भी उसी खानदान का। जी अब इसकी उम्र वो 1840 इसलिए भी नहीं कहते कि सुल्तान जो है ना, वो जो थी इसकी पहली बीवी, उसके घर 2 लड़के हुए, सुल्तान और फजल। ठीक है। सुल्तान 1852 में पैदा हुआ। ठीक है। अगर वो मान लें कि मिर्जा कादियानी 1840 या 41 में पैदा हुआ, 11 साल का बच्चा पैदा नहीं कर सकता। ठीक है, उन्होंने 16 साल का कर देने 35 कह के ताकि सुल्तान ते जम जाए। डॉक्टर साहब ये आपने क्या बता रहे हैं, मेरे तो समझ से बात है ये बातें। नहीं नहीं, मैं तो आपको तहकीक से बता रहा हूँ। जी जी, मैं तो आपको हर बात का सबूत दे रहा हूँ। देखें, मिर्जा कादियानी ने खुद अपनी तारीख पैदाइश लिखी है, मैं तो नहीं ना लिखी।
نہیں یعنی الحکم مرزا صاحب میرا اور اخبار آگے اس تو کے نہیں ہے نا. بچے کی کون سا خاندان ہے؟ یعنی میرا خیال ہے جس دور میں یہ تھا اس وقت تو لوگ بڑے بھلے مان شریف ہوتے تھے، ایسا میڈیا وغیرہ نہیں تھا، کچھ لٹریچر ایسا نہیں ہوتا تھا. چوڑوں میں کہاں سے شرافت آئی تھی؟ اب جی میں وہی تو کہہ رہی ہوں کہ مسلمان تو اس وقت کا بڑا مطلب بہترین مسلمان ہوتا تھا. نہیں مسلمان ہو تو بہترین ہو نا، جب ہے ہی نہیں ہے مسلمان تو پھر کیا. آپ کو میں حقائق بتا رہا ہوں ثبوت کے ساتھ. آپ کے ہاتھ میں نے کتاب پکڑا دی ہے، ابھی اس پر آئیں گے ہم. جی اب بالکل یہ ہم صحیح کتاب فرما رہی مجھے 350 پاؤنڈ کے بدلے میں ملی تھی، میں سب کو فری میں ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہوں. ہیں. جی بہت شکریہ، جزاک اللہ. ہے نہیں، آپ کو میں ایک بات بتاؤں نا، آپ دیکھیں کہ آپ رشتہ اسٹیبلش کریں امام دین سے. چوری میں اس کا یار، جاری میں اس کا یار، شراب پینے میں، زنا کا، ہر بری جی بات بالکل میں اس کا یارانہ تھا اس کے ساتھ دوسرے بڑا والوں. قریبی یارانہ. جی اب دیکھیں کہ اب سلطان اس کا لڑکا ہو نہیں سکتا. اب یہ بھی بڑی پریشانی ہے مرزائیاں نو کہ ان سلطان نو کس طرح مرزے دی اولاد ثابت. اور دیکھیں میں ایک اور ثبوت دیتا ہوں. چیفز آف پنجاب پہلا ایڈیشن جی صفحہ نمبر 50، وہاں پر لپیل گریفن نے لکھا ہے کہ سلطان فضل دونوں جو ہیں غلام قادر کی اولاد ہیں. سمجھتا تھا یار پہلے 2 منڈے تے ادے ہی ہون گے نا، ادوں تے کچھ نہیں سی. وہ تے بعد چو پتہ لگا کہ وہ تو اس قابل ہی نہیں تھی کہ اولاد ہوئے. 11 سال کا بچہ کہاں سے 11 اولاد سال ہوئے؟ کا بھی ہو جائے 60 سال کا ایک ہی برابر ہے. ٹھیک ہے نا. نہیں مرزائیوں نے مجھے بدتمیزی مجھ سے کر کے، ان کی قسمت خراب تھی، انہوں نے مجھ جیسے آدمی سے بدتمیزی کی. ہاں میں نے ان کے کچے چھٹے کھول دیے ہیں. میرا 2000 پاؤنڈ کے قریب خرچ آ چکا ہے تحقیق پر. اور دیکھیں، اور میں آگے آپ کو بتاؤں. اب آپ کہتی ہیں کہ خاندان ایک نہیں. اب جو تھا نا سلطان، اس کی جو دوسری بیوی تھی نا، اس کا نام تھا خورشید بیگم. ٹھیک. اب خورشید بیگم مرزا طاہر کی جو بیوی آصفہ تھی نا، اس کی سکی دادی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بارے میں، اس کی خورشید بیگم کی ماں اور امام دین کی بیوی کے بارے میں تذکرہ میں آپ نے وہ اعلان پڑھا ہوگا کہ امام بالکل. دین کی کنچنی بیوی گری پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. اب خورشید بیگم امام دین کی ایک ہی اولاد تھی، یعنی مولائی روحانی پیشوا چوڑوں کا، رئیس قادیان. اور یاد رکھیں انگریزوں کی کتاب میں امام دین ہی رئیس قادیان ہے. میرے پاس 5 ایسے ڈاکومنٹ موجود ہیں. مرزا تو نمبردار بھی نہیں تھا. تو اس کی اکیلی اولاد ہے. اور 1870 کے 76 کے بعد کا واقعہ ہے، بلکہ 1880 کے، مجھے صحیح تاریخ نہیں یاد. سلطان کے اس نے امام دین نے خورشید بیگم اپنی اکلوتی اولاد کی شادی سلطان کے ساتھ کی. اچھا. سلطان اس کا دادا تھا، آصفہ مرزے کی جو بیوی تھی اس کا سکا دادا تھا سلطان. ٹھیک ہے. تو اس کے جو دعوے ہیں اس کے بعد چوڑے سے شادی ہوئی سلطان کی، تو اس نے منع کیوں نہیں کیا؟ بھائی چوڑے نال نہ شادی کرتا. اچھا ہاں سر یہ ورڈ لکھے ہوئے وہاں پہ؟ نہیں، میں پوچھ رہا ہوں یہ سوال اچھا آپ کہ پوچھیں. ٹھیک ہے. مرزا قادیانی نے یہ کیوں نہیں کہا کہ سلطان تو چوڑے نال بیاہ کر رہے ہوں ساڈے نال. اور ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں، ہمارے مسلمان بھائی اور قادیانی دونوں اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ امام دین چوڑوں کا روحانی پیشوا تھا. صحیح کرتے ہیں کہ نہیں؟ اور امام دین اس کا رائٹ ہینڈ تھا. اور یہ امام دین کا رائٹ ہینڈ تھا. آپ غلط
ले रही। नहीं, इमाम दीन जो था ना वो ही कह रहा ना कि मुझे इसने ये वर्गलाया, मुझे ये किया, तो नहीं वो तो इन्होंने लिखी ना अपनी कहानी। असल में ओके 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 ठीक है, इमाम दीन का जो ये पीछा राइट करता है, था वो ठीक है। कादियानी था, ठीक है ना, ठीक हो हकीकत तो गया। ऐसे ही यानी है। इमाम दीन को भी इसी ने वर्गलाया हुआ था। नहीं, इमाम दीन को इसने गलत रास्ते पर उसकी मदद चाहता था, क्योंकि वो एक बाअसर खानदान से था, ये बिल्कुल उसकी ठीक हो गया, प्रोटेक्शन ठीक है। चाहता था, क्योंकि उसका बाप भी मौलाई था। आप समझे ना? अब आप मुझे एक बात का जवाब दें। बाल्मीक मजहब जो है ना, इस मजहब में खुदा एक आदमी है बाल्मीक नाम का। ये 5000 साल पुराना मजहब है। बाल्मीक 5000 साल पहले पैदा हुआ एक हिंदू खानदान में। ये रामायण और गीता दो मुकद्दस किताबें हैं ना तारीख की हिंदुओं में। बाल्मीक रामायण का मुसन्नफ है, ऑथर है उस किताब का। जी, ये इसने बाद में खुदाई का दावा कर दिया और हिंदू मजहब से अलग हो गया, और इसने अपना मजहब इजाद किया, बाल्मीकिज्म। इस मजहब में 2500 साल पहले एक नबी आया, उसका नाम था लाल बेग। अभी मैं इस किताब से ही आपको दिखाऊंगा उसकी तफसील। लाल बेग, ठीक है। तो आपने देखा ना, कौम लाल अभी इस बेगियां। बुक में लिखा हुआ था लाल बेग जी। हाँ, लाल बेगियां, कौम लाल बेगियां, मौलाई हिदायत कुनिंदा कौम लाल बेगियां। अब अच्छा। आप मुझे बताएं जी जी, कि क्या 5000 साल पुराने मजहब के लोग एक मुसलमान के पास आएंगे, कहें कि यार सानू बड़ी कमी है, अपने रूहानी पेशवा दिया बंदा मामदीन तो सानू देना, हाँ, हमने इसको पेशवा बनाना है। आएंगे वो? नहीं, वो तो उनका पेशवा है, सारे मानते हैं। पेशवा का तो पूरा खानदान उस मजहब का वफादार होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मिर्जा की तो मुसलमान खानदान दा हो गया। बड़ी अजीब इसकी। फिर नहीं, देखें, हमने तहकीक की है, मैंने कोई कहानी नहीं घड़ी है, मैं तो डॉक्यूमेंट्स दिखाता हूं लोगों को। खानदान काफिर खानदान है, इनके नाम मुसलमानों जैसे हैं, इमाम दीन का भी मुसलमानों जैसा नाम। अब देखें, सफा नंबर 8 खोलें इस किताब का जी। ठीक है, हाँ, हम इकट्ठे पढ़ेंगे सफा नंबर 8। जी आप जी पूरी किताब जरूर पढ़ना। जी जी, मैं बिल्कुल पढ़ूंगी। बड़ी छोटी सी है। दिलचस्प चीजें हैं ये, और मैं ये कहता हर हूं मुसलमान को ये जाननी मिर्जे चाहिए। खानदान का असली मजहब है, जिसको मिर्जे ने छोड़ दिया। ये देखें, सफा नंबर 8 आप खोलें, इसके सफा नंबर 8 पर एक बात लिखी हुई है। वो शुरू होता है कि वली मर्दा हक चहते नहीं है, खुदा के काम बस रुकते नहीं है। ठीक है ना जी? जी, यहां पर लिखा हुआ ये इसके मजहब की, इनके अकायद की किताब है दीदे हक। जी बिल्कुल। और इनके यहाँ आपको इस किताब में लिखा मिल जाएगा कि दीद 2 दफा होती थी, सुबह और शाम को। दीद का तरीका भी लिखा हुआ है। अगर आपको मुसलमानों वाला लगे तो फिर मिर्जे ने मुसलमान कह देना, जी जी, जे ना लगे तो फिर इन्ना लीला पढ़ लेना। देखें जी, यहाँ पर दरमियान में लिखा हुआ है, बल्कि ये लोग, आप वो हर एक फ्रीक को ऐसा ही वाजिब है। ये लाइन आप देख सकती हैं। जी जी, मैं देख रही हूँ। हर एक फ्रीक को ऐसा ही वाजिब और लाजम है कि जैसा हो रहा है, मगर ताहाल कौम लाल बेगियां की कुछ भी तरक्की नहीं हुई। अच्छा, पढ़ी, ये लाइन देख रही है ना आप? जी जी, बिल्कुल देख रही हूँ मैं। सबब नावाकफियत और बेखबरी के मुनहरिफ होकर कोई मजहबी सिख, कोई मुसलमान, कोई ईसाई, कोई सरबंगी वगैरह बन गया। अब भाई इमाम दीन ना मुसलमान हो सकता नहीं, तो कहता कि मेरे मजहब वाले थे, कोई सिख बनता जाता है, कोई मुसलमान दा ढोंग रचांदा है। उसने लिखा है 2 काफिरों की कहानी में, मिर्जा मुसलमान होने का ढोंग रचाया। आपका क्या ख्याल है, इस लाइन का क्या मतलब है कि वो मुसलमान था इमाम दीन? वो तो कह रहा है कि मेरे मजहब को छोड़ के। आगे सुने क्या कहता है। गर्ज इनकी पस्त हिम्मती और बेअक्ली और गफलत ने यहां तक काम कर दिखलाया
کہ ہر ایک قوم کے نزدیک حقیر اور ادنا اور حرام خور شمار کیے گئے. کہتے جنہوں نے بالمیکی مذہب چھوڑا ان کو کہہ رہا ہے حقیر ادنا اور حرام خور ہیں وہ. اور آگے دیکھیں لوگ مجھے کہتے ہیں میں مرزے نو چوڑا کہنا, تسی آپ پڑھ لو, کہندا اور چوڑے کے نام سے مشہور ہوئے. کیوں جی؟ آپ نے پڑھی یہ لائنیں؟ جی آپ ڈاکٹر کی صاحب آواز نہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وہ کہاں چلی گئی؟ جی میں ذرا وہ بیٹا بلا رہا تھا. جی نہیں, آپ نے یہ لائنیں پڑھی جو میں نے پڑھی؟ جی دوبارہ پڑھنی پڑے گی اب آپ کو. ہاں Sorry. سنیں, کہہ رہا ہے کہ ہر ایک فریق کو ایسا ہی واجب اور لازم ہے. آپ کو یہ لائن نظر آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. کہ جیسا ہو رہا ہے مگر تاحال قوم لال بیگیاں کی کچھ بھی ترقی نہیں ہوئی. اچھا میں ٹھیک پڑھ رہا ہوں کہ نہیں؟ جی بالکل ٹھیک پڑھ رہے ہیں ہم. کہتے ہیں بلکہ یہ لوگ, یعنی لال بیگی مرزا قادیانی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, جی بلکہ یہ لوگ اپنے دین کے طریق سے باسبب ناواقفیت اور بے خبری کے منحرف ہو کر کوئی مذہبی سکھ, کوئی مسلمان, کوئی عیسائی, کوئی سربنگی وغیرہ بن گیا. ٹھیک ہے. تو ان میں سے تو مرزا خاندان والے تو نہ پھر مسلمان ہیں, نہ عیسائی ہیں, نہ سکھ ہے, ٹھیک ہے, نہ سربنگی ہیں. بے شک بڑی خوبصورت گفتگو کی آپ نے ڈاکٹر صاحب, اور اللہ نہیں, تعالیٰ آگے آپ کو سنیں نا. بہت زیادہ اجر دے. اور میں سمجھتی ہوں کہ نہیں آگے اتنا یہ کچھ پورا 2 جاننے کے لائنیں اور سن لیں تو. باوجود اگر یہ لوگ نہ سمجھیں تو پھر ان کی بد نصیبی اور تو کچھ نہیں ہے. ہاں نہیں یہ اگلی لائن سنیں ذرا, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. جی کہتا ہے غرض ان کی پست ہمتی اور بے عقلی اور غفلت نے یہاں تک کام کر دکھلایا کہ ہر ایک قوم کے نزدیک حقیر, ادنا اور حرام خور شمار کیے گئے, جو بالمک مذہب کو چھوڑ کے مسلمان مسلمانوں کر. کہتا ہے اور چوڑے کے نام سے مشہور ہوئے. مرزائی کہندے نے ہولی اسپرٹ سانو چوڑا کہندا مرتے. او بھائی میں کہاں کہتا ہوں, کتاباں جی چوڑے تو تہاڈا امام دین کہہ رہا جے مرزا چوڑا ہے. وہی تو کہنا ہوتے ڈاکٹر صاحب کی کرن. آگے سنیں جی, یہ اور آپ پڑھنا ضرور اس کو ساری کو. کہتا ہے اور سب سے دور پڑے یہ سبب بے عقلی اور بے علمی اور بے دینی کا پہل ہے. جو مسلمانوں کے گاؤں میں بستے ہیں وہ مسلمانوں کی رسم ادا کرتے ہیں, اور جو ہندوؤں کے گاؤں میں رہتے ہیں ان کی وہ ہندوؤں رسومات کی پر رسم چلتے ادا ہیں. کرتے ہیں. بے شک کچھ خبر نہیں. کہتا ہے انہوں نے کچھ پتہ ہی نہیں ہمارے بزرگوں بالمیک صاحب اور لال بیگ صاحب کی کون سی رسم تہی اور کیا آئین دین ہے. وہ بتا رہا ہے اس کے بزرگ کون ہیں. اس کے بزرگ لال بیگ اور بالمیک ہیں. میں نے جب 350 پاؤنڈ جینیالوجسٹ کو دیا اور سیرت المہدی کے پہلے ایڈیشن کی جو انہوں نے اپنا شجرہ نسب لکھا اور 2 جگہ جو کتاب البریہ میں لکھا, میں نے اس کو کہا بھائی صاحب ذرا کنفرم کر دو آنیسٹلی. میں نے کہا کیا ہے مغل بلاس ہے, کون سی کمال کی بات ہے, ہادی علی سے ملتا ہوگا. مجھے جواب آیا سب فراڈی. سب فراڈ ہی ہے. اچھا کہنا ہے شجرہ نسب لبنا ہے تو چوڑیاں مل جا. کوئی حال کہتا ہے نہیں ہے. خاک روبوں کی طرف جا, وہاں ہے اس کا شجرہ نسب. توبہ. اب لوگ کہتے ہیں لیکن یہ چیزیں جو آپ نے مطلب اس کا اتنا نکالنا, آپ یہ انٹرنیٹ کے اوپر بھی موجود ہے, تو کیا یہ لوگ نہیں پڑھتے ہوں گے اس کو؟ آپ نے قرآن تو آپ سناتی ہیں, وہاں کیا لکھا ہے ختم اللہ علی قلوبہم جی وعلی بالکل ایسا ہی سمعہم ہے. وعلی ابصارہم غشاوہ. وہی خاتم ہے جو خاتم النبیین کا. لیکن یہ کون سا خاتم کا معنی صحیح کرتی ہے؟ تو ایسے ہی کر کے تو اللہ ہدایت نہیں دیتا. یہ خاتم کے صحیح معنی کرتے ہوتے تو نہیں اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کان ہیں سنائی نہیں دیتا, آنکھیں ہیں دکھائی نہیں دیتا, دل ہیں سمجھ میں نہیں آتا. بے شک ایسا ہی ہے. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. اس کو کہتے ہیں اللہ کی لعنت اور عذاب. دیکھیے ڈاکٹر صاحب, اس نے تو اپنے خاندانی جو ان کا چل رہا تھا اس کے مطابق اس نے جو کیا, لیکن یہ لوگ جو مسلمان سے مطلب ان کو اپنا رہی ہے اور یا ادھر جا رہی ہے, تو یہ بات تو ان کے سوچنے کی ہے.
نہیں دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. آپ ایک بات تو آپ نے قرآن پڑھا ہے، آپ کو تو قرآن میں بار بار لکھا ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک امتحان کا پیریڈ ہے جو ہر انسان کو دیا جاتا ہے. اسے سیاہ کرے سیدھا، حقوق اللہ کی خلاف ورزی کی کوئی سزا نہیں ہے، اس نے حقوق العباد کی ہے. بے تو شک. اللہ کی طرف سے پوری دنیا اسلام کو چھوڑ دے، کیونکہ قرآن میں تو ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. جو لا اکراہ فی الدین ہے اس میں دین سے مراد اسلام ہی ہے اور کوئی دوسرا دین نہیں ہے، کیونکہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے. بے شک. تو اللہ کی طرف سے اس دین کو سارے چھوڑ دیں. اللہ کو کیا فرق، اس نے تو آپ کو واپس اللہ اپنی کو تو طرف لے کوئی فرق جانا. نہیں پڑتا، کوئی شک نہیں، اللہ نے قرآن میں یہ کہا ہے کہ میں تو سب کو اپنی طرف واپس لے آؤں گا. بالکل. یومئذ یتبعون الداعی، اس دن یہ ایک پکارنے والے کے پیچھے جانا پڑے گا، لا عوج لہ، اور یہ اس سے انکار ہی نہیں کر سکیں گے. بالکل بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے. وخشعت الاصوات للرحمن، رحمان کے سامنے ان کی آوازیں ختم ہو جائیں گی. بے شک. لا یسمعوا الا ہمسا، اور سوائے ایک بنبناہٹ کے کچھ سنائی نہیں دے رہا ہوگا. ان کو تو پتہ ہی نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ تو اللہ کی ایک سزا ہے. اور یہ جو قادیانی ہے نا انٹرنیٹ پر لگے ہوئے، ان کو ہم سے زیادہ پتہ ہے قادیانیت جھوٹ ہے. جھٹکا میں نے انہیں صرف اتنا دیا ہے کہ بھئی مرزا دا پیو بھی کافر سی. میں نے جھٹکا ان کو اتنا سا دیا ہے بس. اچھا اور اس کا ابھی میں آپ کو ثبوت ایک اور دیتا ہوں. ٹھیک ہے. مسلمانوں ابھی کو کاکا دفن، بھائی بھی تشریف لائیے. کاکا بھائی السلام علیکم. ہاں کاکا سپائی تو السلام ورحمۃ ماشاء اللہ اللہ. وبرکاتہ. سب احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور رمضان مبارک ہو. ماشاءاللہ میری بہن واپس آئی، بہت خوشی ہوئی. تو بہت شکریہ. جی جزاک اللہ. جی ڈاکٹر صاحب کو بڑا کر دے پلیز. میں جی سمجھ ڈاکٹر نہیں، صاحب مجھے نہیں کی کرنا گفتگو پڑا، سنی اب نہیں کاکا بھائی کرنا. آپ نے؟ جی جی ڈاکٹر صاحب کی میں نے پوری گفتگو سنی دین ہے. حق کے حوالے سے. جی جی بالکل سنی ہے، بلکہ ایک ان کے بہت بڑے مربی ہیں اوپل، ان سے پچھلے 4 دن پہلے میں نے کہا تھا جی کہ 1864 سے 1864 سے پہلے مرزے کا نام غلام احمد دکھا دیں. انہوں نے کہا جی اگر ہم دکھا دیں تو آپ بیعت کر لیں گے. میں نے کہا آپ دکھائیں اس کا نام. تو انہوں نے مجھے 15 منٹ پہ ہولڈ کرا کے رکھا. جرمنی، کینیڈا، 3 ملکوں کی حکومتیں بھاگ رہی تھی. اس کے بعد انہوں نے مجھے آئی ڈی کہتے جی شناختی کارڈ. تو میں نے تھوڑی دیر بعد ان کو بتایا کہ شناختی کارڈ تو ہوتا نہیں تھا اس وقت، راشن کارڈ ہوتا تھا. کہتے جی ہاں جی ہم مرزے کا راشن کارڈ دیں گے. اچھا. ہاں جی. ان بڑے بڑے 3 مربیوں نے مجھے جو حوالہ پیش کیا وہ ایک پوسٹ کارڈ ہے، کسی نے اس کو پوسٹ کیا ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے صرف مرزا غلام احمد صاحب. تو مطلب مربی جو ہے اتنی فراخ دلی سے جھوٹ بولتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ 1864 سے پہلے اس کا کہیں پہ بھی ہائی اسکول میں، پرائمری اسکول میں یا کسی رجسٹرڈ آفیشیل طور پہ اس کا نام غلام احمد نہیں تھا. تو انہوں نے وہ پوسٹ کارڈ مجھے پیش کر دیا جس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ 2 کلو سبزی اور 3 کلو بھاجی سنسکرت میں لکھا ہوا ہے. یہ دیکھیے. اچھا پھر ہم نے اس کی تحقیق کرائی تو پتہ لگا کہ وہ 1971 میں سنگاپور سے کسی نے اپلوڈ کیا ہے. وہ جو کارڈ مربی، ان کے 3 بڑے مربی تھے، اس میں شیخ ہادی تھا، اوپل تھا، اور ایک میرے خیال مکرم یا مختار مربی تھا. تینوں نے کہا جی میں نے 150 مناظرے میں یہ شناختی کارڈ مرزا صاحب کا پیش کیا ہے. تو یہ تھی تحقیق. یہ سب سے پہلے جو بات ہے، یہ جیسے ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں، یہ بشیر احمد صاحب جو ہیں، جو احمدیہ فیکٹس چیک blog.org پہ ہے امریکہ میں، بشیر صاحب، انہوں نے کتاب چھاپی. اور یہ بھی کتاب، پوری کتاب ڈاکٹر صاحب کے پاس بھی ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ بھنگی تھے. جی ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ. ام بہن بہت شکریہ، آپ نے اتنی خوبصورت معلومات دی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اس سے تمام مسلمانوں کو بھی اور قادیانیوں کو بھی بڑا فائدہ ہوگا. جی